क्रिस, छक्का ना चौका, चकना चौका देवर ढूंढे मौका. देवा डूंडे डोंका. Guys, as you all know, Brett Lee was one of the fastest bowler in the world. Brett, you were so fast in your delivery. Have you ever thought to become a gynecologist in your college days? I have 3 children. They're the best 3 deliveries I've ever bowled. There you go. Bowl him. Brett, you have a beer company in Sydney, right? Next time I'm here, I'm going to bring all the beer for you, okay? Oh, lovely. आज तो आपके दीवाने हुए बड़े इंटरनेशनल लोग. मेरा नाम कन्हैया ज्ञानचंद सीधा पटवा है. ये एड्रेस भी साथ में बताया आपने? His name is so long. I think your parents had a lot of spare time. वैसे मेरा जॉब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ क्लास में अच्छा जी. 11-12 के लिए. मेरा भी रिसेंटली एग्जाम. यार आप अभी खुद इतने छोटे से लग रहे हो. हाँ सर, वो चेहरे से लग रहा हूँ लेकिन चेहरे से लग रहे हो तो कहाँ से बड़े हो? They are asking for sixer. Namaste. Sir, so happy to have you back. Welcome back. Thank you very so much. much. It's good to be back. Thank you, my bro. What would you Namaste. like to have? Tea, coffee, or chilled beer? Cold beer. Chill beer, man. I love a chill beer. You know that lady who is sitting Hi. on the chair. Namaste. Yeah. Namaste. She is very expert in handmade liquor. Yeah. Okay. You remember when you came last time in my show, Brett, so you also? Yep. There was Sidhuji sitting in front of you. Yeah. Now, are you missing him? No, I'm not. Where is he? Much better. It's much better to look at a Sundar Lerki. Aha. Brett, sir, after retirement, you started flirting also? कपिल, सुंदर बोला ठीक है लेकिन लड़की बोला. अच्छा, Chris, इतने chilled out man है. It seems that you keep doing party, bro. Yeah. So last night you were doing party or you were just staying in the hotel? I did a little bit of partying last night. Don't tell anybody, please. No. You know me already. I don't party too much, right? Oh yeah. You know, last time when Gail came to my show, he showed some of pictures from his house in West Indies. And he was showing, see, this is my house. I'm partying. She's my wife. And who is she? She's my ex-girlfriend. And she's also my ex. And 3 of his exes were present in the party. Wow. You have girlfriend in India also? Not many. Only 2. Not many. Oh, in India. Yeah, only 2 in India. Chris, this man is so jealous. Is he? No. Brett sir, what about you? Do you have any friend in India who is girl also? Oh. Is it your wedding ring? Of course. Yeah. Oh. No, everyone knows, I love coming to India. It's an amazing place. Lots of great people over here, but great to be back on your show. It's been, 7 or 8 years since I've been here. It's been a long time. क्या बोले? Sorry, my English is when you came last time, You want it my in Hindi? English was very weak. Well, my Hindi now it's thoda. almost dead. Oh. Welcome, guys. We are so happy you. to have you back. Please. Chris being- has a very beautiful smile, but today it's showing extra large. Is it because you are on my show, bro? Yeah. Bright smile. Ching. Any toothpaste company approach you for ad? You know what? They say they run out of money. They can't afford me these days. मेरे को बताओ क्या बोला? कह रहा है मेरे को अफोर्ड नहीं कर सकते ये लोग कमर्शियल के लिए. Yeah. Chris, so many girls and women wanted to ask you. You have such a long hair. Yeah. How much time do you take to tie and fold? I mean, My hairstylist in Jamaica, it takes about an hour because, she's so accustomed doing it now, so it's pretty much, it's normal to her to just finish it quickly. But it's just, who want to feel? Come and touch it, yeah? oh. Guys, Brett Lee is also multi-talented person. He looks like some model, actually. Yeah. Model. I don't He think so. sings very well. He plays guitar also.
Wow. So all these are your hobbies, or you have too much EMIs to pay? Probably. I've always played cricket, but music's been my passion. But I was better at cricket, so I stuck to cricket. But I love all things. I love, No, it's a good thing actually. you have to be busy. Got to be busy. So that's what I'm. So in between, I have to speak in Hindi also. Thoda Hindi. Oh, thanks for telling me. Namaste. Keso. कैसे हो? कैसे हो? Yeah, good. Up se milke khushi hoy. वाह मैन, हमें भी बहुत खुशी हुई. Thank you. अच्छा, क्रिस की जैसी पर्सनालिटी है ना, लंबी चौड़ी पर्सनालिटी है. हाँ. ये मैदान में उतर कर ना बैट से ऐसे पिच चेक करता है ना जाके, जब क्रिस ऐसे ऐसे करके, तो जो अंपायर होता है ना, वो घबरा जाता है कि ये अगर गलत डिसीजन मैंने दे दिया, इसको आउट दे दिया, तो ये बॉलर के साथ साथ मुझे भी पीटेगा. वो ना थर्ड अंपायर को पास आउट कर देते थे डिसीजन. क्रिस, डोंट यू हैव ट्रस्ट ऑन द एक्सपर्ट्स, और यू जस्ट वांट टू शो द बॉलर्स दैट इफ यू विल mess with me, I will beat you with this bat like this only. I mean, Not really. Sometimes the crack pops up a bit, so I'm just tapping it back in place, pretty much. I'm just hey, stay down. Stay down. Stay down. Stay down. I'm here, and just let the bowler know, say, hey, I'm going to let the bat do the talking as well. Red, you're so handsome, man. Backstreet Boys. When you're fielding at the boundary, Yeah. some girl is chanting your name behind you, so your concentration remains. Of course, I'll just tell her aramse, Relax. Chris, you're a very strong player, very tall, but you're not stronger than this lady. There was a cricketer, Mr. Sidhu. Yeah? He used to sit in front of me, but she ate him. She swallowed him without any sip of water. Wow. Wow. That's nice. One thing I can tell you, that's a beautiful view right there. That's a beautiful view I'm looking at right there. Beautiful view. You got good taste. देखा, आज तू फ्लर्ट नहीं कर रहा, मैं फ्लर्ट कर रही हूँ. मुझे इंग्लिश बनाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो मेरा बातें बहुत है मेरे दिमाग में. I'm unable to make a sentence. Otherwise, there are too many things in my brain which are not coming out, in English. Yeah. Let me think. अच्छा, हमारे इंडिया में ऐसा होता है ना, कोई फिल्म स्टार जब बड़े पॉपुलर हो जाते हैं, उनके नाम पे मेन्यू बना देते हैं रेस्टोरेंट वाले. चिकन संजू बाबा, दीपिका पादुकोण डोसा. Have you heard any dish on your name? I've seen a few restaurants that people have sent me photos on Instagram or Twitter, and they've seen something on the menu, which no one's even asked for the approval, but hey, it works over here in India. But I would probably say something to do with a spicy dish, because it's got some Spicy some dish. fire. So you don't eat spicy dishes, Yeah, right? toda spice. Toda It's hard, Gora farangi, toda spice. Wow. Indian people, they are spice lover actually. So there's so much spices in our food. No, it's- That's why we don't use tissue paper, because it catches fire. Sorry. Yeah. Ouch. Do you like cooking, Chris? Or you just like to eat like Archana ji? You know what? I love to eat. I'm too hot to be in the kitchen. Oh. You know what I'm saying? Yeah. So I kind of stay away from the kitchen, and the chef handle the business, and then I'll do the eating. I got you, baby. आज पहला आदमी है जो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, देखो. You're the first one, who is flirting with her. Am I? Otherwise, everyone is afraid of her. Oh. She does have a nice smile. I like her smile. You got good taste. But Chris, what is your favorite dish? What do you like to eat? Butter chicken. But Jamaican dish, it's called ackee and salt fish. Voila. Voila.
Yes, beautiful. When you come to Jamaica, I will cook that for you. Oh wow. I can't wait. Brett, what do you like most about India? Well, the people, you know, the warm hospitality. I worked out now that next year will be a big celebration for me because I'll be 30 years I've been coming to India. It's a Wow. long time. So, gonna have a big party next year. But just the warmth, the hospitality, you know, the friendly smiles. You've only got to, you know, drive down the road, you see all the kids on the street, they've all got a big, beautiful smile on their faces. But yeah, it's great to see. I've never been to a country that loves a particular sport as much as India. As much as you know, India. and it's beautiful. अच्छा क्रिस और ब्रेट जो दोनों हैं करेक्टर तो हैं ही कमाल के दे आर ग्रेट एंटरटेनर्स ऑल्सो समटाइम्स दे जैम टुगेदर ऑल्सो कैन यू गाइज प्ले लाइव फॉर योर फैंस समथिंग वट एवर यू फील लाइक वी हैव गिटार वी हैव ड्रम्स Yeah, I don't mind. लेट्स गो Over here. Oh, come on! Check, check, check. Here we go. Bingo in the business. I was actually trying to learn your song Alone, the one that you've done recently. It's a Alone? great Yeah. song. You heard that song? Wow, man! I've become so popular. Thank you, Brett. She got a beautiful smile. I love you so. She got a beautiful smile on Capo Show. Look at the audience. I love you all so much. But Capo Shama is the best. Let it go. I know what a woman can test because Chris Gayle the best. Bradley, my best friend. We always gonna be till the end. But I'ma marry you tomorrow. I love you so much with sorrow. Look at the beautiful lady. Can I call you my baby? I just love it, love it, love it, love it, love it. I love it so much, I cannot forget it. Oh, baby, it's getting hot in here. It's getting hot in here. You guys are rock stars. Please give them a round of applause. Whoa. Wow. आपको मैं ब्रो वेलकम वेलकम टू माय शो बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्को के लिए जोरदार तालियां हो जाएं ये देखिए पर्सनालिटी बंगाल के संजय दत्त हैं ये आर्को को मैं बहुत पहले से जानता हूं ऐसा भी नहीं है इन्होंने जब पिछले साल मेरे एक स्टैंड अप के लिए आई एम नॉट डन येट के लिए एक गाना बड़ा ही खूबसूरत गाना कंपोज किया जो मेरे फादर को डेडिकेट था Wow. गाना और ये आर्को सर ने कंपोज किया था बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग था सर थैंक यू उसके बाद में इन्होंने मुझे कहा कि जल्दी कुछ और प्लान करते हैं मैं तभी समझ गया ये बंदा बिना कपिल शर्मा शो में आए मानेगा नहीं तो आज आप हमारे शो पे वेलकम आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है Arko made a song with Chris whose name is Oh Fatima. Arko, do you like the singing of Chris or do you like his batting? एक्चुअली यहाँ पे जितने लोग हैं आई थिंक वी ऑल आर बिग फैंस ऑफ बोथ ऑफ देम तो ये पहली बार जो आज तो मैं लग रहा है संगीतकार के बजाय ट्रांसलेटर We are all doing that job. मैं पीछे देख रहा था और इतना इतना मजेदार बातचीत है मैं सोचा कि इवेंचुअली आना ही पड़ेगा किसी हिंदी भाषी को ये कपिल की पहली स्ट्रगल है इसने वैसे स्ट्रगल नहीं किया यहाँ स्ट्रगल कर रहा है अंग्रेजी में नहीं मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्यों आई हैव लाइव टूर इन यूएसए Have you? in July he's yes practicing so his I am English. practicing Do you know what?
So I was on here, I think it was 2015 was the last time I was on this show, or the only time I've been on this show. Oh. And no matter where I am in the world, if I bump into an Indian person, someone with Indian heritage, they always say the first thing, I saw you on the Kapil Sharma My show. God. Yeah. I mean that. I can. Same thing. They don't say anything about cricket. Yeah. Kapil Sharma. But you It's know- so true. Thank you, bro. You know, when I met first time Brett sir and of course Chris sir, I got to know that he has such a good sense of humor, Brett sir. हालांकि मुझे कई बातें समझ नहीं आ रही थी इंग्लिश की वजह से, कई मेरे सर के ऊपर से निकली. But that time Sidhu Paji was sitting in front of me. So today I'm missing him. तू मिस कर ले. ये दोनों बोल रहे हैं ये मिस नहीं कर रहे हैं. You're not we- missing Sidhu. Nahi. Nahi hai. ओह, आर्को कंपोजर बड़े कमाल के हैं, सिंगर भी बड़े कमाल के हैं. अच्छा, किसी सिंगर के साथ अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यू नो, इट्स वेरी इजी टू टीच हिम और हर कि आपका ये सुर ऊपर नीचे हो गया है. लेकिन क्रिस जैसी पर्सनालिटी के साथ जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आपकी हिम्मत होती थी इनको बोलने की कि भाई तुम्हारा सुर गलत हो गया है. तो जो भी वहाँ पे हो रहा है, मैं तो कमाल का हूँ. बहुत बैट लेके डबिंग कर रहे थे ये. but I must say one thing, because I have recorded Kapil once, और बहुत सुरीला गाते हैं आप. Thank you भाई, शुक्रिया. Chris, in this song with Arko, you are rapping, you know? Yeah. So you learn how to rap or? Yeah, I learn how to rap. I'm a learner. You know, I love to listen. I love to learn as Wow, well. it's just a good But thing. Arco is so good. You know, he's good with the lyrics and everything like that. And when he sent that track to me as well, you know, it was like he demoed it a bit and said, "This is how I want the song to be sound." I'm like, I've never done it like that before. And you know, immediately I did like the beat, and he said, "Hey, let's do it." Wow. So it was pretty good. बट क्रिस का जो नेचुरल स्वैग है कि कोई सीख नहीं सकता. तो बहुत मजेदार गाना है. वी वांट एवरीबॉडी टू डांस एंड एंजॉय एंड हैव अ ग्रेट टाइम. एंड हु बेटर देन क्रिस, यूनिवर्स बॉस. But I want to ask you, Arko, ये फातिमा कौन है? हाँ, तो Yes. ये Oh, Who is Fatima? Who's Fatima? You. Brett sir, do you have any plan to collaborate with any other singer in India? Not at the moment. Trying to think back, it was 2006 when I had the pleasure to sing that song with Asha Asha ji. Bosley. But I wrote that song in 18 minutes. A Wow. cheesy little love song I wrote. Wow. But she's a legend. Asha हम G. इंडिया में हम लव सॉन्ग के ही दीवाने हैं, है कि नहीं? Absolutely. हमें तुम्हारा हूँ तुम्हारी ही रहूंगा. Chris, now you are retired from cricket. Huh? Who told? Are you retiring? Make a comeback. I'm making Now, a comeback. please tell me the truth. Have you ever played in Hangover? I mean, before one day, you know, you had a party and Right. you are in Hangover and you are on the pitch and you are watching two bowlers are coming. Right now, Kapil, I'm pretty hungover on your show right now. I can tell you that. And you see how good I am, right? Yeah, very nice, bro. Yes, I played hungover, and I've actually been even better. बंद करो बंद करो बंद करो भाई बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो छोटा बंद करो बंद करो बंद करो क्लीन बोर्ड का सब. बैठिए बैठिए, बहुत सीरियस टॉपिक पे बात होने वाली है. बैठिए आप लोग प्लीज. हम लोग बहुत परेशान हैं. हाँ, क्या बोल रही थी, बोलो. बंद करो चौका छक्का बंद करो. हाँ, बंद करो भाई बंद करो. कैच आउट क्लीन बोल्ड बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो अबे बंद तेरे को करो. बोल रही है, बंद करो. आ गए लेना, हम लोग इधर अभी इन लोग से बात करेंगे. सपना क्या हो गया? कप्पू, मैं हेलो सर, नमस्ते. Namaste. नो स्मोकिंग, नो पार्किंग. प्लीज कीप द टॉयलेट क्लीन.
हमको इतना इंग्लिश आता है. एक्चुअली कपू हम लोग ना इधर वो चीयर लीडर लोग का हक मांगने के लिए आई ली है मैं इधर. क्या हक मांगना है? एक्चुअली देखो क्या रहता है, ये क्रिकेटर लोग जब चौका छक्का मारते हैं इन लोगों को बार बार नाचना पड़ता है. देखो नाच नाच के कैसा LBW जैसा मुंह हो गया इन लोग का. कितना प्रॉब्लम है अभी ये देखो. यू नो सर, बेचारी हर नेम इज करीना बट लगती करीम लाला है. मालूम है सर, कल बॉल आके सीधा इसके मुंह पे लगी थी. हम लोग बहुत परेशान. इसका तो पैर भी टूट गया. इसके भी बॉल लगी? नहीं, इसका तो स्कूटी में एक्सीडेंट हुआ था. एक्चुअली क्या है ना, ये पापा की परी है. ये मार्केट में गई थी, सामने दुकान आ गई तो दुकान ब्रेक नहीं मार पाई. ऐसा होता. अपनी मांग तो बताओ. आज का खाना और जाने का भाड़ा. खबरदार, जो इधर सीनियर आर्टिस्ट के साथ कंपैरिजन किया तो तुमने. भाड़ा चाहिए, पहले उनके लेवल की चीयर लीडर बनो. वो कहाँ चीयर लीडर है? अरे पूरी दुनिया जानती है वो एक लीडर की चेयर पर बैठी रहती है. चलो चलो जल्दी नारे लगाओ, नारे. हमें हमारी हक दो, हक दो, हक दो. हक रही थी क्या? हक दो क्या होता है? हक दो नहीं, हमें हमारा हक दो बोलना. अरे दीदी, इतने हैंडसम हैंडसम क्रिकेटर आए हैं, आज हक दिलवा दो. हक किसी और दिन देख लेंगे. शर्म नहीं आती तुम लोग को? बकवास कर रहे इधर आके. एक तो लड़का हो के लड़की बन के इधर आए हो. सेम टू यू. हाँ हाँ. मैं क्या तेरे को हैप्पी न्यू ईयर बोली जो सेम टू यू बोल रही है? चलो निकलो इधर से, तुम लोग निकलो, हटो. बढ़िया, जाओ 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 जाओ. हाय, हेलो, हाउ यू? नमस्ते. हाय. कबूतर उड़ा के दिखाओ ना थोड़ा. हेलो. मेरे को पूछने का था कप्पू. हाँ. सर लोग उधर पहाड़ों से कब आए? हैं? मतलब? नहीं, मैंने सुना था इन लोगों ने सन्यास लिया है ना, तो सन्यासी लोग तो पहाड़ों में रहते हैं, इसलिए अरे मैं पूछ क्रिकेट से संन्यास लिया है. क्रिकेट से सन्यास ले लिया? यस. काहे को? काहे को सन्यास लिया? अभी उम्र ही क्या है आप लोग की? कितनी रहेगी अब? अच्छा किया सन्यास लिया. अरे मैं 2 फॉरेनर लोग से तो बात हो गई. हाँ. खैर मैं इसको प्रॉपरली बात करेंगे इनसे. हाँ. हेलो सर. Hello. Where you are sitting, this is a very historical place. Yeah, thank you. In 400 BC, King Emperor Kapil Sharma made this empire. And in this empire, I made a beauty parlor here, Sapna Beauty Parlor, one of the best parlor in the world. Please, we have different type of massage. It's very sophisticated massage she's talking about. We have different type of massage. Please come, $400, $400. सपना, ये क्या बोल रही है मेहमानों को तू? कप्पू, मैंने देखे ला जब अंग्रेज लोग एयरपोर्ट पे उतरते हैं ना, लोग उनसे ऐसे ही बात करते हैं. इसलिए मैं. चलो आप लोग से तो बात हो गई. अभी ये तीसरा फॉरेनर से हम बात नहीं किए. हेलो स्वातिका. ओ, हेलो. आप खा. वो इंडियन है. आप इंडियन है? क्या बोलते हैं? मतलब इनका भी वही डोनट वाला हिसाब है. कैसे? देखने में मेदू वड़ा लेकिन नाम इंग्लिश रखा हुआ है, डोनट. सर मैं क्या बोलती है? बहुत डर लगता है आपसे सीरियस. अरे नहीं, ये सर ये आगरे के पेठे पे गाना बनाओ ना. ये पेठे पे गाना क्यों बनाएंगे? जब ये बरेली की बर्फी पे गाना बना सकते हैं तो आगरे के पेठे पे क्यों नहीं बना सकते? सर मैं आई कम हियर. Sure. I want to. Very nice. First time personality matching. I got someone. You know, everybody say I am big lady, big lady. First time I got big leda also. Hello, sir. Hello. Hi. You're a tall ladki. No, I'm not ladki. Come on shooting and then we both become ladki.
Fatima, you say no, si Fatima, no. You si Fati Bap. Fatty Bob. Fati Bap. Sir, you know what is this? This is called petha. Eh? Petha, petha. Peta, peta. Peta, peta. Peta, peta. You कैसे समझो? Sweet dish, sweet dish. Sweet dish. Agra, you know, petha. This big kaddu. You kaddu, you cut, and then you put in sugar, and then gap. मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे आप लोग इंग्लिश में कैसे बात करते हैं मैं कैसे बहुत मुश्किल रहता रहेगा How you doing, Will? ये पेटा समझाते मेरा खुद का मालपुआ निकल गया ये नाइस मस्कुलर है नाइस माय छावा इज कूलर छोटा है Yeah? Tell her, what is the meaning of chava? A boyfriend. Chawa. छावा Boyfriend. you understand छावा Nahi, nah. I'll make you understand you know what is no you know what is छावा No? sir when you go theater to watching a film okay and you sit in the corner and you don't watch the film Now I understand. I don't like my छावा will you be my AC AC क्या होता है? ऐसी ही बोल रही थी एक दिन के लिए अगर मेरे ये छावा बन जाते तो नाला सोपारा में लोग कितने खुश होते ना बाहर गांव का लड़का साथ में लेकर आइए आई एम वेरी हैप्पी आई यू मीट यू नो You too. Nice to meet you. यू ब्रेटली Yes. माइकल अंडाली Guys, don't take her seriously. You know, she's not she, she's he. ही ऐसा मैं बोल रही हंस क्यों रही है? मेरे को ना एक्चुअली आई हैव कम फॉर लिटिल जॉब इफ यू कैन गिव मी मेरे को ना चेयर लीडर का जॉब चाहिए था क्रिकेट में यू नो चेयर लीडर का कैसे रहता है आप लोग जानते हो चौके और छक्के पे नाचते वो लोग मैं सिंगल के लिए भी नाच ली चल, सिंगल के लिए कौन नाचता है? सिंगल के लिए नाचना ना कपू इजी रहता है कैसे? क्योंकि अगर शादीशुदा के लिए नाचो ना तो फिर औरत आ जाती है ऐसे हाँ औरत ऐसे इन स्विंग आती है तो हमको खिड़की से आउट स्विंग होना पड़ता है खैर whenever you come Yeah. no problem I can meet you Yeah. I take only 1 hour to become a girl क्या हो गया मेरे को खैर you know I just wanted to ask you people why you people on ground when you play cricket why you scared Why? डरते हैं? कहाँ डरते हैं? अरे एक आदमी रहता है उधर वो ऐसा करता है तो आप लोग ऐसा चले जाते हैं डर के ऐसा काय को नाइस बॉडी यू हैव Out. अरे वो अंपायर होता है. He's umpire. Yeah. अच्छा, When he say out, then he अच्छा वो has to एम्पायर रहता है ओ यू नो हम लोग अपना गली का के आई स्टे नाला सुपारा When does that? It's out. हाँ 2000 का नोट बंद हो गया है Shower. यू नो मैं ऐसा क्या बोलते हैं उधर नाला सुपारा में व्हेन आई प्ले क्रिकेट नो दैट एम्पायर माय एम्पायर नॉट गुड मैन वो Why? Really? हाँ Why? मैं उधर खेलती है ना तो मेरे को ऐसा हक का इशारा करता है ऐसा बार बार अरे वो वाइट बॉल का इशारा होता है. वो वाइट बॉल रहता है Yes. तो फिर वो ना मेरे को ऐसा ऐसा भी करता है ये कितना कारण है ये ऐसा अच्छा नहीं सपना, लगा ये लेग बाय का इशारा होता है. अच्छा ये सब क्रिकेट का इशारा रहता है ओ तभी तो ये भी क्रिकेट का होगा ना ऐसा करके ये गलत है. ये गलत किया उसने. नहीं गलत थी पूरा अच्छे से किया था फू, ऐसा करके किया लेकिन वो गलत पता है क्यों नहीं है क्योंकि उसने ग्राउंड के बाहर किया था अच्छा. अगर ग्राउंड के अंदर करता ना मैं उसको बताती क्या बताती? अपना नंबर बताती कि बाद में कॉल करना अभी साथ में मेरा छावा मुकेश आयल है ऐसा करके यू वेरी नाइस यू वेरी लॉन्ग आई वांट टू सी मैच माय हाइट विथ यू Very long. oh my god Chris you 6'3" no Yeah. after 6 I am free let's meet
Okay, sit. My God, Archana, yeah! How's you? Hey, man, what is this? What? How you क्या होता है? अरे this is cricketing language, यार. Appealing. That's what you do. How's that? Yeah? You know, Chris, these are two men wearing one kurta. हाय, ये क्या है? हमने जरा सा अपील कर दिया अपील स्टाइल में. ऑल्दो ये जगह कपिल का है, पर कभी कभी अपील भी हो जाता है. चलता रहता है. हाय हाय हाय. ओह, रियली प्लेजर. नमस्ते. एंड हाउ आर यू डूइंग, क्रिस गेल जी? Yes, sir. एंड ग्रेटली जी. Bradley. लेकिन ये खेलते हैं ग्रेटली. Anyway, sir, let me introduce. That is buffalo, my buffalo there. Nice. And buffalo, that is goat. ये क्या बोल रहा है? Goat. G-O-A-T, greatest of all time. Goat. And goat, that is boat. That is bhaisiya of all time. बच्चा तू बड़ी आज इंग्लिश बोल रहा है, तेरी धोती ना खुल जाए कहीं? Bro, अगर आपको भी इंग्लिश चाहिए ना, हमको बोलिए. इंग्लिश हम आपको दे देंगे, चखना और सोडा वहां से लेना पड़ेगा. Anyways, यार मेहमान आए हैं, bro. Did you ask them? Tea, coffee, anything? Yes. You did? Sir, you want tea? Tea. Okay. 3 + 1. Sarma ji, 4 tea and 2 samosa for my consumption. Nice. And some tanda pani. And some tanda pani. Garam nahi. Pani. Garam nahi? Garam nahi. Okay, too much garmi outside. Exactly. Hot. Too much. Yeah. Samosa is not available right now. You want iron rod? Iron rod you're डंडा calling? लेके आऊं मैं? डंडा? डंडे आप एक काम कीजिए, 6 मंगा दीजिए. 3 वहां लगाएंगे, 3 यहाँ लगाएंगे. मैच हो जाए. शर्मा जी, इसके लिए आज बता रहे हैं, आज जो भी बातचीत होगा ना, शुरुआत कहीं से भी हो, एंड क्रिकेट पे ही होगा. चल चल चल, और टाइम ना वेस्ट कर, चल निकला और अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके चल. हट. You want me to go? Yeah. This is not cricketing language. Want me to go? I will take review of that. Review. Audience, he's saying I go. Should I go? No. You lose the review, bro. But I have the mountain view, bro. Sir, I didn't tell you my name only. Myself, Bachcha Yadav. Okay. You know Surya Kumar Yadav? Of course. Me and him have very deep connection. क्या कनेक्शन है? अरे उनका भी 2000 का नोट बंद हो गया, हमारा भी 2000 का नोट बंद हो गया. Brett, he has also big connection with Buffalo, you know. She eats his meal, he eats her meal. शर्मा जी, हम अगली बार आएंगे ना, आपके लिए दूध लेके आएंगे. दूध क्यों? कि दूध का दही कीजिए ना, हमारे दिमाग का क्यों कर रहे हैं? You know what? There was a time when I was small kid, even. I can't believe you were small. I was really small kid that time. I wanted to become cricketer. Oh. But I don't know in life what happened. बन नहीं पाए हम. क्यों? सारा दिन तो तू भैंस चराता रहता, क्रिकेटर कहाँ से बनेगा? तो आपके पास भैंस तो है नहीं, आप बन गए क्या क्रिकेटर? What logic? What I will tell you, हम ना cricketer, I couldn't become one cricketer. But Why? I am from family of cricketer. Really? My father, very big cricketer. मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम्हारे पिताजी फुटबॉलर रहे होंगे. नहीं तो ये गोल किसने किया? Who did this goal? शर्मा जी, अगर हम चाहें तो विराट कोहली की तरह आपको जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन आज हमारा गंभीर रहने का मन कर रहा है. वैसे I'm telling you, Chris Gayle ji, one boy in my village, Yeah. very good cricketer, hitting shots like that, like that, like that. Everyone in my village call him Chris Gayle, Chris Gayle. But he said, no, don't call me Chris Gayle, call me Sachin. सचिन के
He must be a fan of Sachin. No, no. His name is Sachin. वाह बच्चा. Bacha bhai. Yeah, bhai. I forget to tell you something. Yeah. Get out. करने क्या आए हो यहाँ पे? I have come because Brett Lee ji and Chris Gayle ji, I want to teach you commentary in Bhojpuri. Okay. There is a regional language in India. Regional language called Bhojpuri. And nowadays, Bhojpuri language is catching up. So instead of English, you should try Bhojpuri. Bhojpuri. It's a lot of fun. Okay. I will teach you. See, if you are giving commentary, okay, and someone has hit a century, Yeah. you say, "Eh, baka garda uda de." Yeah, ba, kato gore. Garda uda de. Kakara. Garda uda de. Dauda daya. Dauda hai. Garda uda de. Nice, nice, nice. One more situation I'll give you. That someone is Toro one, like. a smaller one. Oh, yeah. Slowly, slowly. So someone is batting. Yeah. And suddenly he gets LBW. You say, Amai Ramai. Amaramai. Someone hits a huge six. You say, Lailota. Kya baat hai? Yeah. Kya baat hai? Where to go? Lailota. Very nice. I'm a producer also of Bhojpuri movies. My movie is called Bauji Karel Pout Devar Ho Gail Run Out. Good luck with that. Bauji Bauji. Karel Pout. Bauji karve. Karel Pout. Pout. Wow. Devar Ho Gail Run Out. Run out. Yeah. Wow. One more. One more. Chris, छक्का ना चौका. Chakna chokoka. Okay, once more. That was a chaka na chaka. छक्का sixer. Chakka. Chौka means 4. Yeah. छक्का ना चौका. Oh, chaka no chaka. Yeah. देवर ढूंढे मौका. Deva tunde tonka. I'm done. Thank you so much. Thank you, Bacha. Thank Bacha bhai. Yeah. You're a champion. You're a champion. The champ. It's a pleasure to meet you. Thank you. It's a pleasure. But I also want to say that you have very famous people. You have millions of followers. I just want to request. I have no followers. So will you please follow me? Okay, where are you going? Where are you going? Where? Yeah. Social media account I don't have. Follow me. Where? Follow me. बच्चा, get out of here. Guys, please. All right. Thank you. Okay, Bacha. I'll see you. Brett sir, you know, in India what happens, cricket is so popular that, in my childhood, we used to play cricket in our streets. Yeah. Gully cricket. Yeah, gully cricket. Yeah. Oh, Yeah. it's so much good in Hindi. So we used to play cricket, Last time I discussed with you also. So my mother, used to wash the dirty clothes with that. Bat. We called it thapi. It's made of wood. So whenever we get a chance, we stole that thapi from our house and we are playing cricket. When our mother got to know that thapi is missing, she's coming in the street abusing us. Where are you? Where are you? Abuses I can't translate because they are too hard. So what happens if mum's done the washing and your underwear's still on the bat? What happens? We play in the street in Jamaica. We play in the street as well. That's how I grew up. Does it ever happen you are playing, you hit a sixer, and suddenly after 30 seconds, one man is running towards you. And he said, you broke my glass. And when he saw you, he said, no, there is no fault of yours. My glass was weak. Did you broke any glass of your neighbor? Yes, Ever? many. Wow. Many
car glasses, you know. Oh. They have to give the club the invoice and those sort Really? of things as well. Windscreens? Yeah, a lot of windscreen. I've broken a lot of windscreen. We had a even roller windows door. as well. I've smashed a lot Yeah, of windows. Wow. It's a universe boss, man. We had like a garage door at home, a big garage door, like about the size of that. And I think it's still there today, the house that we grew up in, and it's got dings from where we were born with the cricket ball, all you know, across the door, Famous. everywhere. It's covered in dings. Chris, there is a famous saying in India, "Chakke chuda dena," means completely destroy your opponent. Chake chuda dena. Dena. Chake chuda dena. Yes, Wow. yes, which you are doing from last so many years. Yes. I think it is because of you, you know, the players like you. Absolutely. I love it. Guys, as you all know, Brett Lee was one of the fastest bowler in the world. He used to deliver with a speed of 150 km/h. You all know. So, Brett, you were so fast in your delivery. Have you ever thought to become a gynecologist in your college days? Sorry for my question. But you know, we need, you know, more gynecologists because, you know, in India, in terms of population, we produced Australia in 1 year. In 1 minute, we are producing 49 kids. Well, I have 3 children. They're the best 3 deliveries I've ever bowled. Bowl him! Let me remind you, during the 2019 T20 World Cup, Chris scored 27 runs in 1 over of Brett Lee, which is good thing for Chris, not for Brett Lee. Yes. You must be very angry that time. Have you ever thought to buy a new SIM card on the name of Arco and abuse him? 100%. Or troll him on Twitter or Instagram or something. But I bowled a ball in England, bounced him, he went, the ball still hasn't landed. It went over the fence, over the stadium, Wow. over the road, and landed in the back of a school play yard. My God. That was a chaka chuda dino. Compromise Mahanga Padega. Brett, is there any moment in Australia especially, Yeah. when, you know, Indian team went there to play and you went to Sachin or Sehwag or Yuvraj and you told them, see, my girlfriend or my wife is there watching me live. Don't play so hard. I will take you out for shopping after the match. You know, I mean, you are friends with all the, you know, players. Yeah. Oh, look, there's been plenty of occasions where I've got batsmen out, but they've smacked me as well. You know, every time that we played against Sachin Tendulkar, he normally got 100 against us. I mean, he's a genius. But it was more so. We always played same as I was played against, you know, the universe boss. We always play so hard on the field. Like there's energy, there's sledging, it's fun. But off the field, we're really good friends. I caught up the other day with Sachin, which was nice to see for afternoon tea. But there's no cricket balls bowled. Luckily. Nice. But, you know, of course, I know you were friends with all the players, but people were scared of your bowling, you know. Very quick. Like you, I mean, bowlers are scared to bowl, you know. I mean, I was scared too. Brett Lee bowling 95 miles per hour, that's not an easy thing to face. You know, Wow. so it's a good thing I was young that day anyway still. And I have a good eyesight at the time. And I could have picked up his delivery. It was always funny though that you'd be at breakfast prior to a test match or a one-day match, and you know both teams would stay at the same hotel, and I'll be down there, and someone from the opposition would offer to, would you like a juice? Do you want some coffee? Do you want some more toast? I'm like, I'm still gonna bounce you. They're trying to be nice But to thank you. Yes, I'll have a coffee, but look out. Yeah, try to be friendly. So we have some of your pictures which you posted on Instagram, on social media for your fans. You know, nowadays, people started writing very funny comments because we started a segment Yep. where we show celebrities their pictures and they write very funny comments. Okay. Let's have a look. This is the best. Chris ने ये फोटो डाला है. I'm a pull-up baby. Okay, let's read the comment. आपकी स्माइल जान ले लेती है क्या? आप मेरी बीवी के सामने स्माइल कर देंगे? Someone wrote,
You have a killer smile. Can you please smile in front of my wife and kill her? What a comment. ये सही है. अगर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो हाथ से उठाकर भी पेट्रोल पंप तक ले जा सकते हैं. Very small. और दिखाइए. इस बच्चा गाड़ी में भी पेट्रोल डलता है या चॉकलेट वाला दूध डालना पड़ता है? Milkman is in town. और दिखाइए. So Brett sir posted this. Wow. Wow, what a photo. You are looking very handsome. Yeah. Want to come much on? Oh. This is very comfortable, you know, traditional dress of India. It's very comfortable, but it's when the wind blows, it's a bit. You have to take care of yourself. But it has a inbuilt air conditioner. Yeah, it does. Nobody can stop the air going inside it. बस बातें बड़ी आ रही, मेरे से इंग्लिश में नहीं बन रही बस. Let's read the comments, please. Hey Lee, what are you wearing? Someone replied, this is धोती जिसमें चेन नहीं होती. आदमी जब पहन के सोती धोती मुंह पे होती. Hey Brett, is it true that you are a relative of Bruce Lee? No. No. लुंगी पहनकर खेलने का फायदा तो है. LBW आउट नहीं हो सकते. बॉल धोती में फंस जाएगी. और दिखाइए. आर्को ने फोटो डाला है ये. My new found excitement desert bike Habibi mode activated. Very nice picture. दिखाइए कमेंट्स. हबीबी मोड पे हो इसलिए खुश हो. बीवी मोड पे होते तो वाइफ बाइक पे बैठी होती और आप धक्का लगा रहे होते. ऐसी बाइक पे बैठने का एक फायदा तो होता है, लेट रात घर आओ तो कुत्तों के काटने की संभावना बहुत कम हो जाती है. भाई अगर सर पे ये पट्टा ना बांधो तो दुबई वाले एंट्री नहीं देते क्या? और आगे दिखाइए. क्रिस ने फोटो डाला है. स्वीट लाइक शुगर. क्रिस, व्हाट आर यू हैविंग? व्हाट इज दिस ड्रिंक? I mean, it's so big, like a watermelon. It's like it's a watermelon, like a cocktail, like Mojito. Yeah. Okay. It looks like a fish So bowl. sweet, but I'm sweeter. Yeah. जब आप अपने बजट से महंगी ड्रिंक ऑर्डर कर दो तो आंख ऐसे ही फटी की फटी रह जाती है. That expressions when waiter mention the price of the drink. Yeah. When you are enjoying your drink and suddenly your wife asks, "Where were you last night?" Our 90 ml drink is equal to 30 ml for Chris. जिस तरह से ये देख रहे हैं वेटर तो बिल लेकर ही नहीं आएगा. और दिखाइए. Oh, rated the old man's veggie patch with the kids. How good. Very nice picture, sir. Is this in your backyard, Brett? Yeah? That's at Mum and Dad's Yeah, place. Mum and Dad's place. Yeah, Oh, so wow. they've got my dad's got a veggie garden. It'd be as big as this studio. It's massive. Awesome. Wow, wow. Wow. So as long as we get in there before the karagosh, then we can eat it. Oh, the rabbits. The Rabbits get in there and they eat it. We have Hindi so well, Brett, sir. Yeah, Khargosh. You know, very, I mean... Khargosh. Okay, let's read the comments, please. आम आदमी हो या फेमस क्रिकेटर, फ्री का सामान कोई नहीं छोड़ता. Yes, exactly. You are my biggest crush. I like your face more than your pace. Thank you. And that's from Bacha. वीकेंड पर इनका दोस्त बॉटल ला रहा है, इन्होंने सैलड बनाने का काम लिया हुआ है. और दिखाइए. धन्यवाद. आप सब जानते हैं ना कि हमारा इंडिया और पाकिस्तान का मैच जब होता है हमें तो क्यूरियोसिटी होती है ये देखने की. पूरी दुनिया को ये जानने की उत्सुकता होती है कि कौन जीतेगा. Yeah. In Australia or West Indies, is there any specific match people are mad about? That's always a big build-up. India, Pakistan. Same you know, match. it's a rivalry. same, Everybody Yeah. always look पूरे forward to that. दुनिया में this You have must be to- like one of the biggest sporting spectacles, right? Oh, it in is. the world. And like Yes. Australia versus England, the Ashes, Ashes, is always yes. always Yeah, big. yeah, that's yes. But Australia versus India now is big in a test match. Yeah. It's funny though, I have been to an Indian wedding and that's like a test match. It goes for 5 days. Kapil, I had a question for Brett.
You have a beer company in Sydney, right? Yeah, it's going well. So we're actually coming out to India next year. So yeah, we launched in Australia back in 2016. We're in Malaysia and China, coming out to India next year. So very, very, very excited. Yeah. You know, there was a purpose why she asked this question to you. Can So you give her a next time lifetime here, I'm free going to bring membership? all the beer for you, okay? One crate बोला इन्होंने? हाँ. No, she's asking for lifetime free membership. Done. Free beer for you. देखा? आज तो आपके दीवाने हुए बड़े इंटरनेशनल लोग. मैं देखो अकेली आप. हूँ ना लड़की यहाँ पर आज. अच्छा, जैसे आम लोगों में आपने देखा होगा जो मैच देखते हैं ना, वहम बड़े होते हैं, सुपरस्टिशंस बड़ी होती हैं. इंडिया में होता है ना कि ऐसा कि यार आदमी को बाथरूम भी जाना तो उठता नहीं कि नहीं विराट कोहली खेल रहा है, अगर मैं उठ गया तो ये ना आउट हो जाए. भाई तू जा, कहीं तेरा ना कहीं आउट हो जाए तो, है ना? Yes. तो do you believe in superstitions? Sometimes, but I always put my left shoe on first. Oh. It may be habit, maybe routine, but I did it one day and got a few wickets, so I thought I don't want to upset the gods, you know? So I think it's more a habit for me, to be honest. It's not more superstitious. It's just something you build yourself into, and just become a habit for you to just continue doing it. we played against a guy from South Africa called Neil McKenzie. Very, very superstitious. Oh. So he went out to bat one day in a test match and scored 100. And someone had lifted all the toilet seat Oh, up. Okay. So next time we went out to bat, all the toilet seats had to be up. I mean, crazy. सिर्फ इंडिया नहीं, हर तरफ लोग. So we have we always do some interaction with our audience. great. So आप लोग भी बिलीव करते हैं कुछ ऐसा है तो आप लोग बयान कर सकते हैं. जी भाई साहब, माइक दे दीजिए इनको. हेलो एवरीवन. हेलो. हेलो कपिल सर. हेलो, वेलकम. मेरा नाम कन्हैया ज्ञानचंद सीता पटवा है और मैं क्या सर कन्हैया ज्ञानचंद सीता पटवा सर. ये एड्रेस भी साथ में बताया आपने? नहीं सर, वो फैमिली का भी नाम है सर. His name is so long. I thought he's mentioned address also. Okay. I think your parents had a lot of spare time. Yes, कन्हैया जी. सर वैसे मेरा जॉब, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ क्लास में अच्छा जी. 11-12 के लिए. मेरा भी रिसेंटली एग्जाम. यार आप अभी खुद इतने छोटे से लग रहे हो. और हाँ सर, वो चेहरे से लग रहा हूँ लेकिन मैं 23 के ऊपर का हूँ सर. चेहरे से लग रहे हो तो कहाँ से बड़े हो? बॉडी से. सर जैसे कि सुपरस्टिशन की बात हो रही है, अंधविश्वास की, तो मेरा भी एक सुपरस्टिशन है सर जो मैं मानता हूँ. अच्छा. स्नीजिंग सर, छींक जो आती है. हाँ. लोगों के लिए स्नीजिंग अशुभ होता है सर, लेकिन मेरे लिए सर शुभ है, पॉजिटिव है. सर अगर मुझे स्नीजिंग आ गया, मैं पढ़ रहा हूँ, एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया बिकॉज थोड़ा प्रेशर आ गया, रात तक पढ़ रहा हूँ, तो मुझे फिर वो पढ़ लेना है सर. अगर वो मैं पढ़ लेता हूँ तो एग्जाम में वही आता है सर. बोर्ड में भी ऐसा हुआ है और यहाँ पे एमएससी में भी ऐसा हुआ है सर. इसलिए मैं अपने कॉलेज में मैंने टॉप 3 रैंक आया सर. तो मेरे लिए पॉजिटिविटी है सर स्नीजिंग. अगर आपको जुकाम लग जाए आप तो आईपीएस बन सकते हैं. हो सकता है सर. अर्ज किया है इरशाद. बोले इरशाद. हाँ जी, इरशाद. कपिल पाजी का खुद का बोलबाला है निराला. कपिल पाजी का खुद का बोलबाला है निराला, पर आज हिम्मत देखो, इन्होंने पूरी रेडियो इंडस्ट्री को बुला डाला. सारी इंडिया की हसीनाएं हंस हंस के लेना चाहती हैं इनकी पप्पी. एक्चुअली हम सारे ही रेडियो वाले दे दे क्या जादू की झप्पी. चलो चलो आओ मेरे साथियों. माइक दे दिया. जोरदार ताली हो जाए. आप सबसे ना एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस एक. अब तक आप सब सुनते थे हमें. अपने माँ बाप की कसम खाओ, देखने के बाद सुनना मत छोड़ना. अच्छा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. पहले एक बात बताइए, आज आप रेडियो से निकल के टीवी पे आए हैं, कितना खुला खुला महसूस कर रहे हैं आप? आप में से कई लोग होंगे जो जीतराज को सुनते हुए बड़े हुए होंगे, एंड आज शायद अपने 25-30 साल के करियर में पहली बार पूरी तरह से कैमरा के आगे खड़ा हूँ. अर्चना, क्या बात है. कपिल पाजी, आपका जादू. पूरी तरह से खड़े हैं आप कैमरा के सामने. हम कैमरा कहाँ डालें जो आपका चेहरा दिखे हमें? पाजी
अभी आज तक हम इतना भी नहीं देख पाए, आप ले आएंगे, इतना भी नहीं पता था हमें। भाई एक बात बताइए, जो आप हमेशा आपका फेस आज तक किसी ने देखा, ये कोई स्ट्रेटजी है या आपने उधार ले रखा किसी से बहुत ज्यादा? ये एक बहुत बड़ा प्लान है जिसको रिवील करने का समय अभी आया नहीं है। तो फिलहाल चूंकि रेडियो यानी आवाज है, इसलिए अभी भी जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ आवाज ही है। ये जीतूराज है या नहीं, यू डोंट नो। शायद किसी और को उठाकर भेज दिया लेकिन है। ऐसा क्या किया आपने, क्या मुंह दिखाने लायक नहीं? ये जो कपड़ा आपके होठों को टच करता है तो ये आपका पानी नहीं चूस जाता होठों वाला? जो होठ सूखते नहीं आपके? कुछ आदतें हो गई है तो वो लग जाता है। आप खाली फेस पे ही लगाते हैं मास्क? जी, तो ऐसे कितने लोग हैं कि जो जानते हैं कि आप जीतूराज, आपका चेहरा उन्होंने देखा है आपकी फैमिली के अलावा? कुछ ही लोग अच्छा, होंगे हाँ। बिसाइड्स। हाँ, ये रेडियो हमारी वालों ने देखा ही है। अच्छा, कि उसका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। मैं इसलिए बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं और जीतूराज हम लोग एक ही रेडियो स्टेशन पे काम करते थे। अच्छा, तो ऑब्वियसली मैंने इनको देखा हुआ है। हाँ। लेकिन अगर सड़क पर अगर मुझे मिल जाए और मैं इनको हाय जीतूराज बोल दूं तो ये मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे। हाँ, ये भी है, बिकॉज वो दूसरा जीतूराज हो सकता है, ये वाला नहीं। कौन सा वाला है हमें पता नहीं है। And मैं हमेशा इस बात से डरा हुआ रहता हूँ कि जो आवाज लगा रहा है वो दोस्त ही है या कोई और है, क्योंकि ऑफिसेज में अनमोल जैसे लोग जो हमको जानते हैं पर्सनली, वो किसी और नाम से बुलाते हैं। सो नोबडी कॉल्स मी जीतूराज करके कोई बुलाता नहीं है मेरे को। क्या बुलाते हैं? कुछ और नाम है, अलग अलग नाम है। हाँ, वो अंदर की बात है। और बहुत मिस्ट्री है भैया, बहुत। और एक वजह और है शक्ल ना दिखाने की, खास तौर से रेडियो के लोगों को। क्या? मुझे याद है एक बहुत बड़ा फैन था मेरा, क्योंकि रेडियो में दिखता है नहीं, कुछ नहीं दिखता। वो 5 साल से सुन रहा था मुझे। जब उसने मुझे देखा, 5 मिनट देखता रहा और फिर ये बोला, भाई बस ये बता, ये आवाज तुझ में से ही निकल रही थी। इसलिए बच के रहते हैं हम थोड़ा। जीतू जी, मुंह तो आप किसी को दिखाते नहीं, तो आधार कार्ड पे आपकी फोटो के अंगूठा लगाया? ठीक है, आपको रेडियो में होना चाहिए कपिल पाजी। वैसे ही सवाल पूछते हैं आड़े टेढ़े, जैसे रेडियो वाले पूछते हैं। हमारे मन में से भोले सवाल आते रहते हैं। आधार कार्ड वालों को भी पता होगा, ये मैंने अभी हिसाब लगाया। आधार कार्ड वालों को मेरा सही नाम भी पता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आकाशवाणी द्वारा जब FM लॉन्च किया गया था तो जीतूराज देश के पहले आरजे बने, और ये देश के पहले आरजे हैं जिन्हें इंडिया में बेस्ट आरजे के लिए इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, और कुछ हफ्ते पहले इन्हें 3 गोल्डन माइक अवार्ड्स भी जीते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने ही हमें दी है। पर ये हमारे लिए फख्र की बात है। हम बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आज इतने टैलेंटेड हिंदुस्तान के सुपरस्टार आरजे जो हैं वो आज हमारे शो की शोभा बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, आइए प्लीज। थैंक यू। नाविद भाई के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इनको मैंने पर्सनली बहुत बार बोला है, बहुत सारे इंटरव्यूज में भी बोला है। मैं एक किरदार करता था राजेश रोड़ा, वो जो किरदार जो बेटे मेरे को आपकी वो मुझे लगा के जो आता है, वो मैंने पहली बार नाविद भाई की आवाज सुनी थी। अच्छा। और मुझे इतना पसंद आया वो, इतना मैं लगातार वो प्रैंक सुनता रहा, मेरे दिमाग में वो इतना बैठ गया। मुझे था कि यार, फिर एक दिन कहीं मैंने वो बाथरोब वो देखा पिंक कलर का, मैंने ऐसे खरीद लिया, एक टोपा लगाया, तो वो कैरेक्टर पहले दिन इतना छा गया वो टीवी पे। ये क्रेडिट आपको जाता है नाविद भाई, आपके वजह से था वो। कपिल भाई, वो एक बार करके दिखाइए ना प्लीज। अक्सर होता है जब किसी के रिश्ते की बात हो, तो मैंने एक लड़के को फोन किया था कि हमने आपका प्रोफाइल देखा है मैट्रिमोनियल साइट पे, मेरी लड़की है, आपका फोटो देखा। तो जनरली क्या होता है, फोन जब करते हैं जब लड़का पसंद आ जाए। तो मैंने कहा बेटा, मैंने ना आपका बड़ा फोटो देखा। बराबर। मैंने आपका फोटो देखा बेटा, आप मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए। मैं तो कह रहा हूँ, पहले मेरे को लगा मेरे को पसंद नहीं आ रहा शायद। मैंने अपनी वाइफ को दिखाया, कहते फिटे वो, ये तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, ये है ही नहीं इस लायक। तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया। तो ये यहाँ से डेवलप हुआ था, एंड आई एम सो हैप्पी कि कपिल भाई ने उसको वहां पहुंचा दिया। और तो ये कपिल भाई के लिए भाई ये जन्मदाता उसके आप हैं। मलिश्का से हम पहले बहुत बार मुलाकात कर चुके हैं अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, मेरा इंटरव्यू भी लिया था। बड़ा अच्छा बोलती हैं ये। मलिश्का घर से ऑडियंस लाई हो? सीरियसली? मेरी टीम है रेडियो वालों की। हैं? तो फिर तभी मैं कहूँ इतनी सारी लेडीज एक ही अरे साथ। ये सारी मेरी टीम है कि नहीं? हेलो बोलो।
शर्मा जी रेडियो वालों का बहुत दूर दूर तक मैंने कुछ कहा है देवी जी? Correct. मैं तो यही बोल रहा हूँ, मैं आपकी तारीफ ही कर रहा था कि Correct. मलिश्का आप बोलो इतना ना। अच्छा बोलती हैं। जब मैं इनसे मिला तब मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा भी बोलती हैं। आप सब जानते हैं मलिश्का को, मॉर्निंग नंबर 1 विद मलिश्का में सुनते हैं। ये मॉर्निंग का सबसे लंबा चलने वाला शो है। गुड मॉर्निंग मुंबई करके जब ये उठाती सारी मुंबई उठ जाती है। 20 साल से ज्यादा हो गए इनको इस फील्ड में। आपको क्या लगता है और कितने साल काम करना पड़ेगा कि आपकी पेंशन लग जाए? भाई रेडियो वाले ये पेंशन सबके देते लिए- हैं, आप में से किसी को ये मिल रहा है? सवाल सबके लिए है वैसे। हाँ, मैं आपको बता दूं कपिल, लेकिन रेडियो एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर बहुत सारे लोग जो छूट भी चुके हैं वो बोलते हैं कि वापस आना है। बड़ा कूल माहौल होता है रेडियो बड़ा का। बहुत बार अमेजिंग अमेजिंग, ऐसे नहीं, बिल्कुल आपके शो की तरह कि क्या होगा पता नहीं है, फिर भी पता है कि क्या होगा। अच्छा, मॉर्निंग शो वालों को ये भी बड़ी दिक्कत होगी है ना, कभी बर्थडे जैसे साल में सबका एक बार तो आता ही है, कोई कैसा भी हो। तो रात को कभी ज्यादा हो गई हो, हैंगओवर में शो करना पड़े, गुड मॉर्निंग मुंबई, और अंदर मलिश्का ऐसे कर रही होगी। कभी हुआ है? बहुत बार। आप तो आज भी हैंगओवर में लग रहे हैं। पांडे जी टी टोटलर है लेकिन, है ना? हाँ, मैं- पांडे जी टी टोटलर हैं, चाय पीते हैं खाली चुस्कियां। हाँ बस कुछ खाता पीता नहीं हूँ मैं, लेकिन नहीं, बहुत अच्छी बात है। और कुछ? और पाजी एडिट नहीं होता, लाइव होता है। हाँ, live होता तो है। मतलब ये सोचिए तो सारे shows live होते हैं? मोस्टली नॉर्मली लाइव होता है। हमें लाइव होता वाह, माइक ऑन किया, गाली गलौज कर दी बाय मिस्टेक, इट इज ओवर, करियर का एंड। सोचो हमने कभी गालियां दी ही नहीं, इतना लंबा करियर चल रहा है। एक अंदर की बात है जो शायद जो रेडियो आपकी सारी बातें अंदर की है ना, मैंने देखा। कपिल, ये बात खास उन लोगों के लिए है जिन्होंने रेडियो स्टूडियो अंदर से नहीं देखा है कि सब लाइव एज इन लाइव होता है, बट कुछ सेकंड्स होते हैं। अगर आरजे बहुत इंटेलिजेंट हो रेडियो पर शो करने वाला, तो कुछ सेकंड्स होते हैं, अगर मुंह से कुछ बकवास निकल भी गया और वो बटन अगर सही समय पर दबा, किल बटन बोलते हैं उसको, तो वो गलती रेडियो की बाहर नहीं जाएगी। बट ये बहुत कठिन काम है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉसिबल थिंग्स। अशक्य होता है। अभी किसी ने दबाया आपने वो किसी ने बटन हाँ, मैं I was about to ask, मैंने तो किसी नहीं ने दबाया, अब हमारा स्टूडियो से हटा ही दिया गया अब तो वो। अच्छा, हटाया दिया। पर आपको पता है जब से आपने गुड मॉर्निंग मुंबई करके लोगों को उठाना शुरू किया ना, जब तक आप नहीं करती थी शो, उसके पहले अर्चना जी ने एक मुर्गा हायर किया था। तो ये सहारनपुर से लाई थी। पहले वो गधा था, 4 क्लास पढ़ के मुर्गा बन गया वो। तो वो इनको बांग दे के उठाने आता था। बड़ा बड़ा प्यारा मुर्गा था, बड़ा ही डाउन टू अर्थ। वो पहले किचन में जाता था, इनके देखता था सब्जियां बनी हुई हैं, देखता था बनी हुई, फिर इनको बांग देता था। तो मैं एक दिन इनके घर गया, मैंने पूछा कि ऐसे किचन में क्यों जाते हो? कहता जी मेरे बाप दादा हम लोग पुश्तैनी काम करते आ रहे हैं, तो दादाजी और पिताजी दोनों बांग देने आए थे, आज तक पता नहीं चला कहाँ है। तो जिस दिन आपका शो आया ना, जैसे आपने मुंबई को उठाया, उसी रात इन्होंने मुर्गा उठा लिया वो। तो मतलब मत रो मुर्गे। जब पांडे जी को आप देखो ना, इतना भोला भाला चेहरा, तो इनकी, लेकिन अगर आप आवाज सुनो, बड़ी लगता नहीं कि इतनी बेहतरीन दमदार आवाज इनकी होगी। नॉर्मली ऐसी आवाज लड़के के बाप की होती है, लड़कों की, इनकी खुद की है। भाई आपको कभी किसी ने हल्के में लिया है? मतलब आपने कभी किसी को प्रपोज किया हो तो उस लड़की ने कहा हो कि इतनी भारी आवाज मैं तो दब जाऊंगी भाई मैं, ऐसा हुआ कभी पांडे जी आपके साथ? नहीं, मतलब साधारण इंसान जब जिंदगी में मिलती है तो दिखता एकदम कैसे दिखता हूँ, तो ये वो, मैंने कहा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बड़ा बेस यार। हाँ भाई, इतना ही बोलना पड़ता है बस। जी आपने बिल्कुल सही कहा, जी क्या प्रॉब्लम थी। अच्छा, अपना स्केल होता है, आप जहाँ पे सेट कर लो, है ना? जैसे मेरे को आदत है, इतने लोग बैठे हुए हैं, अच्छा जी आपको पता है ये स्केल होता है। नहीं, नॉर्मल कभी कभी मैं 1-2 बार किसी हीरोइन को बहुत पसंद आते उसको, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका क्या है? तो मुझे लगता है कि बेस वाली आवाज अच्छी लगती है लोगों को। उसके रीजन है उसके पीछे जी। जब क्राउड बहुत होता है तो आप हाई पिच में बात करते हो, और कैसे यार कपिल तुम मेरे बैठे ना, लेकिन पर्सनल जिंदगी में मेरी बहुत बेस में आवाज है, लेकिन इतनी बेस है कि वो वाइब्रेशन होता है। तो हाँ जी, क्या चल रहा है? ये मेरा व्यक्तिगत नीचे ऐसे होता है कुर्सी में, है ना? बच्चन साहब को बड़े पर्दे पे देखे हैं थिएटर में, तो जिस कुर्सी पे आप बैठे होते वो थोड़ी नीचे गर गर करती। रजा मुराद साहब भी, हमारे शहर की कुछ औरतें आपके गांव की तरफ आई हुई है, तो होता है ना। अनुराग भाई का प्रोग्राम जो है पिक्चर पांडे, आप सब सुनते हैं, बड़ा ही बेहतरीन प्रोग्राम है। ये मोहल्ले की आंटियों से भी ज्यादा तेज ना गॉसिप सुना देते हैं फिल्म वालों की। आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से पांडे जी? सोर्स बहुत है मेरा, नेटवर्किंग बहुत अच्छी है मेरी। तो नेटवर्क इज नेटवर्क, तो अपन ने वही कमाया सिर्फ नेटवर्किंग के जरिए। आप जैसे दोस्त हैं, सब इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, भाई ऐसा हो गया है, क्या बात कर रहा है, क्या प्रूफ है भाई, ये प्रूफ है, बस वो ऑनर बोल देते हैं। अरे उधर नेटवर्क को पंजाब में चुगली कहते हैं। आओ बहन
चुगली करे। ऐसे पता है जब कोई फिल्म स्टार ये भूल जाता है ना, मैंने अपनी वाइफ को दूसरी एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट दिया था, तो वो अनु कपूर साहब को फोन करते हैं, वो फिर बताते हैं, ओ जी आप कांस में गए थे, वहां पे आपने घुटनों के बल ये दिया था। कभी किसी ने आपसे ट्रिविया लेने के लिए फोन किया? कई बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। उनकी पुरानी फिल्म नहीं मिलती है। मैंने आज तक तकरीबन 9,000-9,500 फिल्में देखी हैं। बाप रे। हाँ, और मुझे वहाँ याद रहता है, मतलब। अच्छा जी। और वही घर में मार इसी बात पे पड़ती थी कि तुमको याद रहता है कि बच्चे ने कौन सा शर्ट किस हीरोइन के साथ कब पहना था और ये गाना कब गाया था। ये याद नहीं रहता है कि इसका मैथ्स क्या करने का है। अब नहीं याद रहता तो नहीं याद। तो घर वाले डांटते थे इस बात? बहुत जम के। मेरे फादर डॉक्टर हैं और खानदान प्रतिष्ठा। क्या कर रहे हैं आप? ये ऑर्केस्ट्रा जाके वो बीच में ड्रम बांध के नाचेंगे आप? मैंने हाँ करता था। जब आपको पहली बड़ी सैलरी मिली तो आपने पिताजी के सामने नोट गिने? ये देखो। अरे मजाक मत करो यार, अभी बताता हूँ, 8 साल पहले हुआ। अच्छा। एक मैं शो होस्ट कर रहा था, बहुत बड़ा शो, सोनू निगम साहब, सुनी थी, बहुत बड़ा शो हिंदुस्तान का। पापा मम्मी आए हुए थे, तो मैंने कहा पापा शो देखते हैं। देखा, मैंने कहा पापा कैसा लगा शो? अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है। और सोनू ने बहुत अच्छा गाया और सुनी थी कमाल थी, तुम भी कुछ किया करो। हम कलाकारों के साथ यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है, बहुत बड़ी पूरी प्रॉब्लम है। दुनिया जीत सकते हैं, हाँ। मम्मी पापा का दिल जीतने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, मतलब खून वून निकालना। मुझे पता नहीं क्यों लगता है मलिश्का आर्जन होती गुंडी होती है कहीं ना। हाँ ऐसा लगता है। अनमोल आपकी बॉडी बड़ी अच्छी, जिम में जाते रहते हैं, पर्दे के पीछे क्यों काम करते हैं? पर्दे के आगे कभी आपका मन नहीं किया? अपने आप को कपिल शर्मा शो के लिए बचा के रखा हुआ था यार। क्या बात है। और आजकल भाई छाया हुआ है पूरा। हाँ। सोशल मीडिया में छाया हुआ है। क्या बात है। कपिल आपने उनसे ये पूछना चाहिए कि सारे हिंदुस्तान के आरजेज में सबसे लकी आरजे ये है। पूछिए क्यों? कैसे? हर आरजे जो होता है वो कभी ना कभी ऐसे सोचता है कि किसी फिल्म स्टार के साथ मेरे को डेट पर जाने को मिल जाए। किसी फिल्म स्टार के साथ हो ना हो मेरी शादी हो जाए यार। इसको बता रहे हो, हर हफ्ते सोचता है। एक ही आरजे होगा पूरी दुनिया में जिसका ये सपना हकीकत में तब्दील हो गया। आप जानते हैं ये शख्स जो यहाँ बैठे हैं ये किसके शौहर हैं? जोर से बोलो भैया। आई थिंक यू मस्ट स्टैंड अप एंड बाउ। अमृता, थैंक यू सो मच फॉर मैरिंग अ बॉय। अमृता राव, थैंक यू सो मच। रेडियो इस फील्ड की इज्जत को आसमां पर पहुंचाने के लिए, एंड थैंक यू अनमोल। अब तो ऐसा कह रहे हैं जैसे शादी से पहले जेल में थे ये। पर ऐसे मतलब उन्होंने, देखिए प्यार मोहब्बत हो जाता है पर उसके लिए मुंह भी तो दिखाना पड़ता नहीं जीतू भाई। अगर आप किसी को मुंह ही ना दिखाएं और आप एक्सपेक्ट करें कि मेरी भी किसी एक्टर से शादी हो। बिना मुंह दिखाए इतने साल रेडियो पर हूँ, यानी भी और कम से कम 50 साल, तो मेरे पेंशन का कोई बंदोबस्त नहीं है। बहुत बढ़िया। जब मुंह दिखाने लगूंगा उसके बाद कुछ और 50 साल काम करूंगा। वाह वाह। तो अगले 50 साल चलती रहेगी ये बात। बहुत बढ़िया। क्या बात। भगवान करे आप इतने साल रेडियो करते रहे, इतने साल सारी दुनिया चली जाए, अकेले करते रहो आप। बहुत, देखिए रेडियो में इतने साल हो गए, सभी को काम करते हैं, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, हमारा तो एक ही है गुरु, वो है हमारे चाचा, जिन्हें हम बड़े प्यार से बोलते हैं। जी हाँ भाई और बहनों, बिनागा गीत माला में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, अगले पायदान पर है सिलसिला फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन ने। शिवहरी का म्यूजिक, यश चोपड़ा की फिल्म का ये गाना सिर्फ आपके लिए भाई और बहनों। हम हैं अमीन सयानी। क्या बात है, क्या बात है पंडित जी। नंद भाई, आप सबको जब मुर्गा बनाते हो किसी ने कभी गुस्सा नहीं किया कि आज मंगलवार है आपने मुझे मुर्गा बना दिया? मतलब ऐसे मैंने सुना सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं करते, आप अपनी मम्मी को भी प्रैंक करते थे आप, कभी सब्जी वाले की आवाज निकाल कर, कभी कुछ। शुरुआत वहीं से हुई थी। पहले तो मैं ये बता दूं, मुर्गा जो है ना, वो आप इस बात से अंदाजा लगाइए मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। आपके चक्कर में कितनी गालियां सुनी है मैंने। तो किसी ने मुझे ये कहा था कि यार एक बादशाह साहब हैं, उनका मुर्गा बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, उनके बारे में बताओ। क्या लगा मेरे चाचा हैं। मैंने क्या करते हैं? कह रहा गाली देते हैं। मैंने इसके अलावा बता। कह रहा नहीं वो बिजनेस करते हैं, और उसने कहा कि इन्होंने ना अपना मोबाइल फोन जो है ना उसका बिल देर से जमा किया था, अब इस बात पे कुछ कर दो। तो मैंने फोन किया, मैंने ऐसे ही बोला, सर वेरी गुड इवनिंग, आपकी मोबाइल कंपनी से मैं बात कर रहा हूँ, आपने मोबाइल फोन का बिल देर से जमा किया था, आपके मोबाइल फोन की तार काट रहे हैं। ये गुस्से में यही भूल गया मोबाइल में तार नहीं होता। कह रहा तार काट के देख तू। मैंने कहा सर तार तो कटेगा। हमने साउंड इफेक्ट डाला, कच्चे से तार काट दी। मैंने कहा सर फोन डेड हो गया आपका।
अब ये गुस्से में यही भूल गया कि मुझसे बात कर रहा है, कह रहा तूने मेरा फोन डेड कर दिया, अब तू डेड है, अब डेड है तू। इस आदमी ने मुझे गालियां देनी शुरू करी। अच्छा मैं भी इंसान हूं, एक लेवल पे आके लगती है। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने कहा सर सॉरी, आरजे नवेद बोल रहा हूँ। ये सुनने के बाद सबसे बड़ी वाली गाली दी। मेरे तो उस दिन अरमान ही खत्म हो गए। मैंने कहा कर क्या रहा था मैं अब तक। फिर ये बहुत चिल्लाने लगा, बहुत चिल्लाने लगा। मैंने कहा सर सॉरी। कह रहा सॉरी वॉरी कुछ नहीं जी, केस करेंगे तुम पे। समझता क्या है तूने कॉल कर दिया उठा के, तू देखता ही नहीं कौन है, कैसे है, किस पोजीशन में है, कैसे लेटा है, कैसे बैठा है, पहना क्या है, कुछ पहना भी है नहीं पहना, तुमने उठा के कॉल कर दिया। और गाली दे रहा, गाली दे रहा, गाली दे रहा। मैंने कहा सर ये सिर्फ एक प्रैंक है, एक सेगमेंट है, इसमें आदमी मुर्गा बनता है, वो हंसता है तो एक वॉशिंग मशीन फ्री मिलती है। ये आदमी 5 सेकंड के बाद ऐसे था। यार दुबेद मजा आ गया यार। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही करता रहे, ऐसे ही करता रहे। मैंने कहा सर मैं यही कह रहा था आपसे, मैं यही तो कह रहा था, इतने झगड़े की क्या बात थी यार। चलिए फिर कभी बात करता हूँ। कहता हेलो वॉशिंग मशीन, कहना मुर्गा तो अब बनाया तेरा। फिर शुरू हो गया गड़गड़ 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 करके। और मैंने अपनी मॉम पे एक बार ट्राई किया था। मैं बचपन से ही ना सब्जी वाले की आवाजें निकालता था। हमारा घर 4th फ्लोर पे था और अम्मी ऊपर बैठी रहती थी। अम्मी सो रही है, नीचे चला गया, ए आलू ले, भिंडी ले, कोरी है, तोली ले, ये सब्जी ले। तो अम्मी उसी आवाज से सोती थी, उसी से उठती थी। जैसे सब्जी वाला है तो उठ जाती थी। तो मैं जाके नीचे वाला, वो बेचारी नीचे उतर के आती थी, फिर डांटती थी। तो ये मुर्गे की शुरुआत वहीं से हुई थी। एक बार मुझे याद है, मैंने अपनी अम्मी को अपनी कलीग के साथ मिलके फोन किया और उनसे कहा कि ये कहो। अच्छा मुझे भी अंदाजा उस दिन हुआ था कि माँ तो मेरी है ये। मैंने कहा ये कहो कि नवेद ने शादी कर ली है मुझसे और आपका एक पोता भी आज तक बताया नहीं है। ओह माय गॉड। अब उस लड़की ने फोन किया, वो बोली कि अम्मी बुरा मत मानिएगा, मैं नवेद की बीवी बोल रही हूँ। तो अम्मी बोली या अल्लाह कौन? नवेद की बीवी। अब मैंने कहा 21। बोली आप घबराइए मत, आप घबराइए मत, हम आपका ख्याल रखेंगे, आपका पोता भी। अम्मी बोली नहीं 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 घबरा नहीं रही, 21। फिर वो कहने लगी, अब वो मुझे इशारा कर रही, क्या कह रही है 21? बोली अम्मी आप बेफिक्र रहिए, मैंने नवेद को भी समझा लिया, हम आपका जिंदगी भर ख्याल रखेंगे, हमसे गलती हो गई, आप हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। बोली नहीं 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 बेटा 21। तो तनिष्का बोली अम्मी आप 21 क्या कर रही हैं? बोली 20 शादियां तो कर चुका है ऐसे कर करके, तुम 21 भी हो, तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी ले। स्मार्ट है। नायद भाई एक लाइव, अगर आप एक ना अर्चना जी के घर पे इनकी हाउस हेल्प हैं भाग्यश्री, बड़ी पॉपुलर है सोशल मीडिया पे। अर्चना जी प्लीज अगर आप अपना फोन दें, उनको बोल देना कि आपकी मैडम इधर पी के थोड़ा आउट हो गई। बोल ऐसे ही ट्राई करके ना, अरे ऐसे ही मैम बड़ा मजा आएगा, प्लीज प्लीज आप चाहते हैं करो ना, बड़ा मजा आएगा। फोन भाग्यश्री का नंबर मिला। बेचारी भाग्यश्री मेरे को माफ नहीं कर रही कभी यार। अच्छा जो एक्ट्रेस भाग्यश्री का भी नंबर है, मैं गलत ना मिला दूं। ये कौन सा वाला? ये अभी मिलाते हैं। दूसरा माइक पकड़ लो, दूसरा माइक पकड़ लो, लाउड स्पीकर पे डालो। हाँ जी मैडम नमस्ते। हाँ जी कौन बोल रहे हो? हेलो हेलो। हाँ जी मैडम कौन बोल रहे हो आप? आप कौन बात कर रहे हैं? मैडम ये फोन मिला है, पड़ा हुआ है इनके, ये मैडम के बराबर में, ये पी के टल्ली पड़ी है यहाँ पे। कौन? आप बोल कौन रहे हो? भाग्यश्री बात कर रही हूँ, उनकी मेड। अच्छा इनके भाग्यश्री मान है आसपास? नहीं। तो इनका क्या करें आप ये बताओ ना, आप इनके साथ काम करते हो क्या? उनके घर पे काम करती हूँ। और तो यार घर पे आप रहते हो, संभाले मैं फिर रहा हूँ, इनको उठा के लेके जाओ ना इनको। मतलब मेरी मैडम ऐसा कभी नहीं करती है। पर ये फिल्म सिटी में है, फिल्म सिटी में। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड होल्ड करो। हेलो अरे आपकी वो है हाउस हेल्प, एक सेकंड। हाँ धीरे से कह रहे हैं खाना बना देना, मैं मेरा चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने बहुत पी हुई है इन्होंने, तो इनका या तो इनके हस्बैंड आ जाए या कोई जो कोई घर से आके इनको ले जाए। थोड़ी उल्टी पुल्टी भी हो रही है तो। नहीं मेरी मैडम कभी नहीं ऐसा करती, वो तो पीते ही नहीं। आपके सामने नहीं पीती होगी, पर पूरी पौनी बोतल को पहली बार में तो पीते। तो एक मेरे को गुस्सा इस बात पे आ रहा है, आप जब बोतल रखते हो, नहीं मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब ये बोतल कभी नहीं करती, नहीं चलो मान लिया, लेकिन अगली बार जब आप इनकी बोतल रखो ना थोड़ी ज्यादा रखना, हम भी पी लें यार, ये अकेले भाई। मुर्गा बन गया, मुर्गी।
भाग्यश्री, हाँ जी मैडम, आप कैसे हो? आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सब मजाक कर रहे हैं, हम कपिल शर्मा शो शूटिंग कर रहे हैं। आई शपथ मैडम। सो सॉरी भाग्यश्री। ये शपथ। मैं भाग्यश्री, उनको समझा रही थी, मेरी मैडम ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, वो कभी नहीं करती, कभी पीती अरे नहीं, मैं आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है आपकी मैडम कितनी प्यारी है। आप साथ में पियेंगे हम दोनों। भाग्यश्री, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये सब मजाक कर रहे थे और कपिल ने मेरा हाथ मरोड़ा ये करने के लिए। मैं मरोड़ सकता हूँ, कोई भी मरोड़ सकता है अपना। खली का हाथ मरोड़ने वाली। I love you भाग्यश्री, so sorry। भाग्यश्री कितनी प्यारी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, बाय बाय बाय। बाय बाय लेकिन उसने क्या कहा, मेरी मैडम कभी ऐसा कर नहीं सकती, वो नहीं पीती है। यही मेरा नाम खराब कर दिया। बहुत अच्छी बात है। शर्मा जी, अरे शर्मा जी, अरे सत श्री अकाल भाई, सत श्री अकाल, क्या बात है। वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सबका। हाय, माई सेल्फ बिंदु, इनकी पत्नी। शर्मा जी, जल्दी से मार्केट भाग के मेरे लिए चिली फ्लेक्स लेके आओ, वो पास्ता बनाना सीख रही हूँ मैं। तुम्हें पास्ता के बारे में बताया किसने कि ये भी होता है? सारा कुछ तुम्हें यहीं आके सीखना है, अपने घर से कुछ नहीं सीख के आई। तुम भूल गए पिछले हफ्ते पुलाव बनाया था तुम्हारे लिए। जान दे कौन सा पुलाव बनाया था। पुलाव पता नहीं कौन से मसाले डाले, नॉर्मली कुकर सीटी मार देना, उस दिन कुकर छींक छींक के मर गया, नाक बह रही थी उसकी। झूठी कहेगी। एक तो मैं सब कुछ इनके लिए करती हूँ, वो क्या है ना, मैंने सुना है कि पति के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। जब मैंने दिमाग से ही मना कर दिया है, तुम दिल में जाके क्या करोगी? क्या मांगता है तुमको? अनमोल, एक आप हैं, कितना प्यार करते हैं अपनी बीवी से। हाँ, तो उनको मिली भी अमृता राव, मुझे मिला वड़ा पाव, तो फर्क तो होता है। तुम जीतू राज क्यों नहीं बन जाती? मुंह क्यों नहीं ढक लेती अपना? मुझे वड़ा पाव बोल रहे हो तो मुझे कौन सा टॉम क्रूज मिला है? मुझे भी तो ढोकले जैसा पति मिला है। थैंक यू, आई लव ढोकला। वेरी गुड, कीप ईटिंग दैट, यू आर लुकिंग लाइक दैट आल्सो। वैसे मलिश का ये देख, ये मेरी गर्लफ्रेंड आई मलिश्का, आज बोल इसके सामने। नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड शी विल बी ऑन माई साइड। मलिश्का, एक टाइम होता था जब हम लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते थे और ये खुद रेडियो पे कॉल करके रोमांटिक गानों की फरमाइश करके। याद है वो दिन? मुझे लगता था कि ये इसका तो कुछ होगा नहीं, गाने तो ढंग के सुने, ये तो है जैसी है। शर्मा जी, हस्बैंड वाइफ ना साइकिल के दो टायर की तरह होते हैं। सोच देख लो, एग्जाम्पल भी साइकिल की। ये नहीं कि जहाज बोल दे कि जहाज के दो इंजन की तरह होते हैं, एक बंद भी हो जाए एक से भी चल जाता है जहाज। कहाँ से बोलूं जहाज, जब से शादी की जहाज की शक्ल नहीं देखी है मैंने। शक्ल मैं दिखानी भी नहीं तुम्हें। ये पहली बार अपनी फैमिली के साथ बैठी, एयर होस्टेस आई, उन्होंने इसको देखा, कहती यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दो चीप लोग वहां बैठे हैं, दो चीप लोग यहाँ बैठे हैं। तुम खबरदार जो मेरे मेहमानों के सामने फालतू आके बोला तो। देख लो इनकी माँ, देख लो, लोगों के ऐसे डैडी होते हैं। अरे वाह, रेडियो वाले लोग टीवी पे आए हैं। एक मिनट, शर्मा जी क्या हाल चाल, सब ठीक तो है? अरे मम्मी, क्या हो गया तुम्हें? तुम दामाद से ऐसे कैसे बात कर रही हो? अरे जब दामाद जी क्या खा खा के जी भर जाए तो ऐसी बात होती है। हाँ, और वैसे भी अब हम यहाँ से जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। सच? कहाँ? अरे दूसरी बेटी के यहाँ, इसी दिन के लिए तो उसका ब्याह किया था कि एक दामाद जी से जी भर जाए तो दूसरे दामाद जी के यहाँ जाके रह लो। हाँ, अब हम तो भय परदेसी के, अपना यहाँ कोई नहीं। बस बिंदु, तेरे डैडी जी आ जाएं बस, फिर साजन साजन मेरे साजन तुझको। अरे एक सेकंड मम्मी, अरे मम्मी, तुम ये बात बात पे गाने क्यों सुना रही हो? वाह जी वाह, ये रेडियो वाले बीच बीच में गाने सुनाए तो चलेगा, मैंने सुना दिया तो कौन सी आफत आ गई? नवेद जी,
हमारे जो दूसरे दामाद जी है ना उनके बारे में क्या बताऊं, एकदम नंबर 1। इनके जैसे नहीं, 2 साल हो गए ये मुझे अभी तक आइसक्रीम खिलाने भी ना ले जा गए कहीं। अरे मम्मी ठीक है, वो तो मुझे भी नहीं लेकर गए, इट्स ओके। अरे तू तो ब्यूटीफुल नहीं है ना, इसलिए ना ले गए। हाँ। अरे अनमोल बेटा, पता है जब मैं इस घर में पहली बार आई थी ना, दामाद जी ने मुझे मुंह दिखाई में कुछ ना दिया। हाँ। मम्मी, हाँ। मुंह दिखाई सास को नहीं, नई बहू को देते हैं। एक मिनट बिंदु, ईमानदारी से बताइए, मुंह दिखाई बनती है तेरे की? हाँ मनीषा, पता है ये पहली लड़की है जो चेहरे की वजह से रेडियो पे आरजे बनते बनते रह गई। हाँ, अरे इसने बहुत बहस करी कि देखो जी रेडियो पे चेहरा तो दिखता नहीं है, वो बोले लेकिन हमें तो रोज रोज दिखेगा। दामाद जी चलो बताओ, कितना खा लिया हमने इस घर में आपका? हाँ, तुम हिसाब कर रही हो? अरे मैं चेक करके देख रही हूँ कि जितना हम डिसाइड करके आए थे उतना हमने खाया कि गुंजाइश रह गई है। कि देख लो, सरकार बोल रही है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका अलग ही स्लोगन चल रहा है, बेटी ब्याओ उसके घर जाके खाओ। ये लोग बड़ा तंग करके रखा है इन लोगों ने मुझे। दामाद जी बस, ये आपका आखिरी ताना हो गया जो मैंने खा लिया। हाँ, इसके बाद कुछ भी बोला मैं ना सुनूंगी। हाँ, कहाँ है आपके वो भाई साहब? आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। ये जो है ना, इनके ये पति है कपिल, इनका मैं ससुर हूँ। पापा आप डायरेक्टली बोल सकते थे ना कि आप मेरे पापा हैं। अरे तुम्हें कौन पहचानता है? अंकल जी। अरे इनको तो दुनिया पहचानती है, कोई सैड हो तो इनका नाम ले लो तो खुश हो जाता है। शाबाश, ये लो आपका जो मैंने बोला था। थैंक यू वेरी मच। अरे ये तो इतने महान है कि पहाड़ों पे जाके चिल्लाओ कप्पू, सामने से आवाज आती है शर्मा 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 शर्मा। ये ज्यादा हो गया, अब इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। पापा ये आप क्या कर रहे हैं? चापलूसी बेटा। हाँ जी सुनो, इनकी चापलूसी करने की क्या जरूरत है? अब हम जिसके यहाँ जा रहे हैं उसकी चापलूसी करेंगे। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं अपनी जान बचा के वहाँ से आया हूँ। क्या? और नहीं तो क्या? क्यों? अरे 3 महीने मुझसे नौकर जैसा काम करवाया और खाने को सिर्फ फलों का छिलका देते थे, वो भी पाइनएप्पल और नारियल का। तुम्हें क्या पता, अरे ज्यादा अमीर लोग छिलके ही खाते होंगे। हाँ, तुम तो फोन पे मुझे बड़ी तारीफ कर रहे थे उनकी। अरे कनपट्टी पे कोई पिस्तौल रखेगा तो तारीफ तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा। अरे नावेद भाई वो तो छोड़ो, वो तो धूप में कपड़े सुखाते थे। पापा कपड़े धूप में ही सुखाते हैं। हाँ, लेकिन मुझे को गीले कपड़े पहनाते थे और धूप में खड़ा करते थे। अब कपड़े बहुत ज्यादा हो गए इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो 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 मेरे। ना मैं कहीं ना जा रही कपड़े सुखाने उखाने। हाँ, तुम तो उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अरे चिराग लेके ढूंढोगे तब भी ऐसा दामाद कहीं ना मिलेगा। है कि ना? बड़े रंग बदल रही हो सासू माँ आज, हैं? अभी तो मेरे को बड़ा बुरा बोल रही थी। नो दामाद जी, मैं तो हमेशा तुम्हारी साइड रही हूँ। वो देखो कैमरा, मैं तो प्रैंक कर रही थी। नहीं, मेरे घर में और जगह नहीं, आप लोग को जाना पड़ेगा। नहीं। कौन हाँ, हंसा करो, मुंह गिर जाएगा आपका नीचे। कैसे बकरी के बच्चे जैसे हंसती हैं, बेइज्जती करवा देती है मेहमानों के सामने। अरे दामाद जी बताओ, अरे इसकी कौन सुनता है, दामाद जी की ना सुनाई। चलो आओ जी, आओ घर में। चलो चलो। थैंक यू। सलाम। बैठिए बैठो। वाह वाह, बहुत बहुत मुबारक हो, स्वागत है आपका शो में। बहुत अच्छा लगा। शेख साहब। हाँ जी। वो गेस्ट इधर बैठे हुए हैं। इधर है। ओ सॉरी, माफ करना। वो क्या है ना, आप लोगों को हमेशा सुना है, अभी देखा नहीं है, इस वजह से आज भी देखा। आज भी कहा था। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। लेकिन मैं आप लोग का बहुत बड़ा फैन है, मैं आवाज से पहचान सकता है कौन कौन है। अच्छा, अभी मैं आंख बंद करेगा, देखना, उधर से शुरू करेंगे। मैं हूँ आपके साथ, कपिल शर्मा के साथ।
ये 92 पॉइंट समथिंग तो कुछ है ही। मैं नहीं खेल रही। मैं खेल रहा। ये क्या हरकत? हाँ, ये आवाज किधर देखा लगते? देखा। ये सोनी टीवी पे कपिल शर्मा देखा। और क्या बात है मालिश का, कैसा है आप? इनको तो आपने सीधे पहचान लिया बिना बोले ही। 4 भंवरों में एक ही गुलाब बेचा। मैंने खुशबू से पहचान लिया। ये क्या है, दिखाई नहीं देता लेकिन सुंगाई तो देता है। बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया आपने। ये परफ्यूम थोड़ा इनको भी दो ना। ये लोग को सुंगाई भी नहीं देता है और सुनाई भी नहीं देता। क्या भगवान क्या। यार कपिल, मेरे को बहुत खुशी हुआ तुमने आज सब उधार वाला लोग बुलाया। उधार वाले नहीं, रेडियो वाले हैं। एक ही बात है, उधार वाला भी पैसा लेके दिखाई नहीं देता, रेडियो वाला भी पैसा लेके दिखाई नहीं देता। और आपने तो लगता है पूरा दुनिया से उधार लिया हुआ। सालों से आप तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। और मैं सच्ची बताऊं, ये ऐसा क्या छुपाया आपने? मैं सच्ची बोलता हूँ, हेलमेट पहनो। मेरे जैसा खुराफाती मिला ना, बस ऐसा करना है, सबको पता चल जाएगा कौन है। शेख साहब, बड़ा अच्छा लगा आप फालतू बातें करने आए थे। कपिल, मेरे से ऐसा बात मत करना, मैं बता रहा हूँ, मैं कोई छोटा मोटा शेख नहीं है। कौन से शेख? बहुत बड़ा शेख। हाँ, वो तो वैसे तो बहुत बड़ा है मैं। लेकिन मेरा जो अबू है, दुबई में उसका बहुत दबदबा है। अच्छा। हाँ, कानून में उसका बहुत पकड़ है। इतने बड़े आदमी है? नहीं, बड़ा आदमी नहीं है। जब भी चोरी होता है ना, कानून उसी को पकड़ते हो। वो तकलीफ है बाबा। हमारा एक ही चाचा है, वो दुबई का नंबर 1 शेख है। अच्छा। फिर हमारा एक मौसा है, वो दुबई का नंबर 1 शेख है। फिर हमारा एक फूफा है, वो भी दुबई का नंबर 1 शेख। एक मिनट, सारे शेख नंबर 1 कैसे हो सकते हैं? वैसे ही जैसे ये बोलती है मेरा शो नंबर 1 है। बढ़िया, fantastic, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे this is amazing। अरे रे, जबरदस्त। मेरा है। थैंक यू, प्लीज बैठिए। लेकिन कपिल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। नहीं। चाचा और फूफा गया तेल लगाने। मेरा जो मामा है, वो सच में नंबर 1। अच्छा है। मेरा मामा के लिए जोरदार ताली हो जाए गोविंदा जी के। खैर, मैं सच में सर आप लोग का वाकई बहुत बड़ा फैन है। मैं इतना बड़ा फैन है, मैं मालूम है सर, दुबई से बहुत खतरा मोड़ के आप लोग को इधर मिलने के लिए आए। क्या खतरा है? अरे कपिल, तुमको मालूम नहीं अर्चना जी, मैं जैसे प्लेन में चढ़ा, मेरा सीट पे किसी ने बम रख दिया। फिर मैं घबरा गया। फिर मैं उसको बोला, तुम अपना बम उठाओ, इधर हम अपना बम रखेगा, मेरा सीट ऐसा कर। वो तकलीफ हुआ मेरे को। कैसे आप? सुंदर। आपका नाम मालिश का, मेरा काम मालिश का। ये आपको बता नहीं सकता है। आप मुंबई की रानी, मैं दुबई का राजा। वाला वाला राजा 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 जिगरवा में समाज। ये शेख अचानक से भोजपुरी कैसे हो गया? अरे हम तोहरा के बता नहीं सकती पांडे जी, बहुत परेशान बानी हम। दुबई में बहुत भोजपुरी लोग हैं। इतना भोजपुरी हो गया है, हम तो काजूर के ऊपर वो चूना और कथा लगा के खाते। और अभी हम फिल्म फाइनेंसर बन गया उधर। अच्छा। बहुत पिक्चर बना रहा है। अभी हमारा एक पिक्चर बहुत हिट हुआ उधर। कौन सा? बहुत पारिवारिक फिल्म है वो। ऊंट के साथ बकरी गई, भौजी बुर्ज खलीफा में पकड़ी गई। ये बहुत हम। और एक और पिक्चर बहुत हिट हुआ, भैया पहन के सूट, दुबई में चरावेला ऊंट। ये बहुत हमारा हिट हुआ।
फिर क्या बात है, इनका मैं बहुत फैन है, नावेद जी के लिए जोरदार चाहिए। बहुत अच्छा आप करते, बहुत अच्छा आप, मैं देखता है सब, बहुत अच्छे। एक मिनट, मैं खा सकता है? अरे ये खाने वाला नहीं है। डॉक्टर ने बोला लाइट खाया करो, मैं इसलिए फिर बहुत आपका मैं देखता है बहुत वो रेडियो मिर्ची में आपको मालूम है वो रेडियो मिर्ची मेरे को भी बुलाया था उधर ऑफिस में, मैं मिर्ची का ऑफिस गया नहीं। क्यों? अच्छा क्यों? क्योंकि मैं शेख है ना, मैं अगर मिर्ची का ऑफिस में जाएगा तो शेख चिल्ली हो जाएगा। मैं गया ही नहीं उधर। और सर मेरे को आप वो मुर्गा बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को आप। अच्छा हाँ वो आप एंड में एक मैसेज भी देता है ना अपना शो में। हाँ। मेरे को भी मोबाइल पे एक मैसेज तो अच्छा लगेगा। कौन सा मैसेज? that your account is credited 30 lakh rupees। ऐसा कुछ मैसेज दो। हम लोग इधर काम करते हैं ना, ये सोनी वाला हर हफ्ते मैसेज भेजता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड 40 लाख रुपीस 50 लाख रुपीस। अर्चना जी को भी इधर से बहुत सोनी का मैसेज आता है, दैट योर अकाउंट इज फोर्सफुली क्रेडिटेड विद 40 लाख। अरे यार फिर सर बहुत अच्छा, मेरे जुओं के लिए पूरा एसएल वर्ल्ड बनाया आपने। टू गुड। ये रखो सर आप। क्या है ये मुंह दिखाई का पैसा दे रहा है। पर मुंह तो दिखाओ। लगता है आपको मुंह दिखाई का कोई पैसा नहीं दिया इसलिए मुंह दिखाता नहीं आप किसी। शेख साहब आप करने क्या आए हैं? आप परेशान कर रहे हैं। कपिल बेटा मैं इधर आया है, साहब उधर प्रोग्राम करेगा, मैं दुबई में आप सब लोगों को हम सम्मानित करेगा खजूर से। शॉल दे के सम्मानित करते ना? नहीं खजूर भी उतना ही गर्म करता है। ऐसा कुछ नहीं। शेख साहब आपका बहुत ज्यादा हो रहा है अभी, आप प्लीज निकलिए अभी। क्या बोला तुम मेरे को? निकलो अभी। मैं हर्ट हो गया। क्या कर रहे हो? मैं हर्ट हो गया, तुमने हर्ट किया मेरे को ऐसा। शेख को कभी ऐसा मत बोलना तुम। बैकग्राउंड के लिए काम तो कर थोड़ा। हम बहुत मासूम शेख, ऐसा वैसा शेख नहीं है। शेख का सिर्फ ऊंट बड़ा होता है लेकिन दिल उसका बहुत छोटा होता है। बस हो गया, इतना भी नहीं है अभी। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इतना मासूम शेख हूँ। कल मेरे को गन का पोस्टर दिखा के वो तेल का कुआं ले गया, मालूम है? पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की आपने? का जरूरत नहीं था, मैंने भी कुआं का पोस्टर ही दिया था उसको। मैं बोला ना मैं शेख है, मेरा दिल छोटा है लेकिन मेरा दिमाग बहुत बड़ा है। तभी तो हम ये बांध के रखता है, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर मैं एक मेरा बहुत प्रॉब्लम है, हमारा घर मेरा भांजा है। मैं कब तक भांजा रहूं? मेरा भी भांजा होना चाहिए। वो मेरा एक भांजा है सर, जैसे आपका शो आता है, आप बकरा हो सॉरी वो बनाते हैं क्या? मुर्गा। मेरा भांजा को उधर यूएई में कोई बकरा बना दिया शो पे, और वो बकरा ही बन गया, वो निकलता ही नहीं उसमें से। उसका जरा आप लोग कुछ कर सकते हैं तो करो। किधर है? डालो बिरयानी में उसको फिर। क्या कर रहे तुम? इधर क्या कर रहे? बस करो, बस करो, बस करो। ये इसको देख रहे हैं आप नावेद जी? ये आपका कोनी से इंस्पायर होके इसने अपना मुंह रखा हुआ है। ये बेचारे ये इतना आपको मालूम है ये बीच का मांग क्यों निकालता है? क्योंकि अगर एक साइड बाल रखेगा तो गिर जाएगा ही। सबको हेलो बोलो। नमस्ते। हाँ तो बहुत घर में इसने टेंशन किया हुआ है उधर, वो सब गार्डन में पौधा खा के सब पौधा गांजा कर दिया। और कपिल में बताओ, ये घर पे हम प्याज काटता है, लहसुन काटता है, ये डर के भाग जाता है कि इसका बिरयानी बन जाएगा।
चलो ये भी कोई टेंशन का बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो गया मेन? बस बस ऐसा नहीं, मत कर ऐसा। क्या कर रहा है तुम? क्या छोड़, हट। ये क्या कर रहा है इधर तुम? ये लो, ये सब मत करना। क्या कर रहा है तुम? सुनो मेरा बात। अरे अर्चना जी को तो हेलो किया नहीं बकरुद्दीन। बस बस पास मत जाना, कहा जाएगी। इधर इधर दूर नहीं रहना। अभी सर इसका मेन प्रॉब्लम क्या हो गया है, ये कल बकरी के पीछे लग गया था। अच्छा। हाँ, तो इसको अभी सुधारना बहुत जरूरी है। तुम बकरी को मिला, तुम बकरी को क्या बोला? I love you. देखा? अब बेटा बकरी तुमको क्या बोला? मैं बताऊं, जैसा आपका रेडियो स्टेशन होता है, इसका चैनल किधर फंसा हुआ है, वो कुछ करना पड़ेगा। 1 मिनट, इसका चैनल चेंज करते में। छोड़िए ना। किधर गया तू? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ यही चैनल पकड़ो। ये बोल। छोड़िए ना। किधर गया तू? क्या हो रहा है? हाँ ये बोल। छोड़िए ना। हे भगवान, बिरयानी। क्या हो रहा है? इसका क्या हो रहा है? मैं काम करता, इसको लेके जाता, कुछ नहीं होने वाला इसका। अरे छोड़िए ना। अरे चल इधर। मतलब आपका बड़ा प्यारा शो आता था, रेट्रो शो जो होता था पुरानी जीन्स, उसमें ही इन्होंने पहली बार अमृता राव जो बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं, इनकी वाइफ हैं, इन्होंने उस शो में उनको प्रपोज किया था। आपको डर था कि अगर लाइव बात करूंगा मना कर दिया तो मुंह पे बेइज्जती हो जाएगी? तो कहते हैं कि हुस्न वालों में मोहब्बत की कमी होती है और चाहने वालों की तकदीर बुरी होती है। क्या बात है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। उनमें मोहब्बत की कमी नहीं थी और इस चाहने वाले की तकदीर भी इतनी बुरी नहीं थी। मेरे मम्मी पापा यहाँ पे बैठे, मेरी बहन यहाँ पे है। दिल्ली में जैसे कि बताया कि अंधेरे थिएटर में देखते हुए हीरोइन से प्यार हो जाता है, ऐसे हम जब देखने गए थे विवाह फिल्म, तो मुझे भी उस थिएटर में पूनम से प्यार हो गया था। हाय हाय। और थिएटर से निकलते वक्त मेरी माँ ने सीढ़ियों पे कहा था कि बेटा बहू लाना तो ऐसी लाना, और हमने तैश में कह दिया ऐसी क्यों, यही लेकर आएंगे। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप कब कहाँ क्या बात कह रहे हैं, और आपके ज़बान पे सरस्वती विराजमान है। और जब मैंने यहाँ मुंबई में आके पुरानी जीन्स के साथ शुरुआत की, मैं सिर्फ लेजेंड्स को ही इंटरव्यू करता था। जो पहली कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेस जिन्हें मैंने इंटरव्यू किया वो अमृता थी, क्योंकि उनका मन था किशोर कुमार स्पेशल करने का। अच्छा जी। तो वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई, क्योंकि वो रोमांटिक गाने हैं, वो रेट्रो गाने इतने प्यारे हैं कि उन्हीं को सुनते सुनते हमारी दोस्ती बढ़ी। और प्यार तो मुझे पहले से ही था। उन्होंने बताया था उनको मिलके कि मेरी पहले से साजिश चल रही है, ऐसा मतलब जब आई आपने बताया? तो आपने जो रेडियो पे प्रपोज की बात कही आपने, तो मैं अपना मन ऑलरेडी बना बैठा था कि अब टाइम आ गया है, गरम है लोहा मार दो हथौड़ा वाली बात थी। रात को वो शूट से यहीं फिल्म सिटी से घर जा रही थी, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आई एम लिसनिंग टू योर शो। मैंने कहा यही सही मौका है। तो रेडियो पे अपनी बात कहने के लिए मैंने ना अपना नाम इस्तेमाल किया ना उनका। मैंने उनका नाम जो इश्क विश्क में था पायल, वो यूज किया, और अपना नाम विकी यूज किया जो मेरे घर का नाम है। विकी पायल को प्रपोज कर रहा है, एक लेटर आया, और रात को 11:45, वैसे भी वो गाने सुन के मैं 2 पैक डाउन टाइप्स होता हूँ उस वक्त पे। तो मैंने कहा कि आपको विकी ये दिल की बात कह रहा है, अगर आपकी हाँ है तो आप विकी को अभी कभी कॉल कर देना, और ना है तो फोन तक मत करना। अच्छा। गाना चलाया चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है, गाने का अंतरा भी खत्म नहीं हुआ होगा पहला कि अमृता का फोन आ गया। क्या बात है अनमोल साहब, आप तो सच में अनमोल निकले यार। बाजी शाहरुख खान सिंगल होते तो रेडियो पे मैं ये ट्राई कर देती। असली नाम के साथ, वो भी क्योंकि शाहरुख खान ना। तो और कोई सिंगल हीरो पकड़ लो। शाहरुख खान जैसा है कोई? नहीं वो तो कोई नहीं है कोई? लोटा
क्या हुआ? अब हमको समझ में आ रहा है शर्मा जी, हमारा रेडियो से इतना देर से आवाज क्यों नहीं आ रहा। वैसे आप लोगों को देख के हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। सच बता, हमारे दादाजी अगर हमारे साथ आए होते ना, उनको भी आपको देख के बहुत अच्छा लगता। इनके बहुत बड़े फैन है। नहीं नहीं, कल उनका आंख का ऑपरेशन हुआ है, वो कुछ भी देख के खुश हो जाते हैं। मैं मर जाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मलिश्का जी भी आई है, जोरदार तालियां हो जाएं। रुक क्यों गए, बजाते रहो। बढ़िया। नावेद जी कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। आपका ना सारा शो हम देखते हैं, हमको बहुत पसंद है आपका सब शो। अरे थैंक हाँ, लेकिन सिर्फ एक दिन हम आपका शो नहीं सुन पाते। कौन से दिन? मंगलवार के दिन। ये मुर्गा बनाते हैं ना जीतूराज जी, नाम जीतूराज रखे हैं, कपड़ा अनीता राज का क्यों पहन के आए? बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। सर, आपसे एक अंदर का बात पूछ सकते हैं? अंदर का हम देखे आप खाली अंदर का ही बता रहे हैं सर। तो ये अपना धनिया का आजकल क्या भाव चल रहा होगा? इनसे क्यों पूछ रही है? अरे मिर्ची वाले हैं, धनिया का तो पता ही गुड़िया, तेरे को कितनी बार कहा है तू ना हंसा कर ऐसे। पिछली बार भी हंसते हंसते तेरी किडनी सलवार के रास्ते बाहर आ गई थी। ना हंसा कर ऐसे। अच्छा जीतूराज जी, देखिए अगर आपके मार्क्स रहेगा तो इसके अंदर फिर आप हंस रहे हैं कि क्या आपका एक्सप्रेशन है, हमको पता चल नहीं रहा है। आवाज आती है, आवाज आवाज आती है, हाँ। लेकिन आपको अगर हमारा बात पसंद आया ना, तो ऐसे कीजिए, और बाय चांस हम पसंद आ गए ना, तो इस पे थोड़ा सा सिंदूर लगा के ऐसे। हम तो दोनों हाथों में सिंदूर लगाकर तैयार हैं। अरे बाप रे बाप, क्या हम सिंगल है ना, रेडी टू मिंगल है। कहाँ सिंगल है तू? स्टेशन पे जाती मेट्रो गेट पे 3 टिकट देने पड़ते तुझे। हाँ सिंगल। अच्छी बात है। आपको पता है, हम सच बताएं शर्मा जी, अर्चना जी, गूगल वाली जो आंटी है तो अभी आई है, जो हमें बताती है कि ट्रैफिक इधर है, ट्रैफिक उधर है। उसके पहले तो यही लोग थे जो हमारी मदद करते थे। इसके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया। सही बात है यार, वो टाइम पे आप लोग बहुत हेल्प किए हैं कि जाम यहाँ पे लगा है, यहाँ पे जाम खुल गया है, ये सब बताते। एक जाम हमारे लिए भी जरा खुलवा देंगे? कहाँ पे? ये ममता बारानी रेस्टोरेंट में। बड़ा शर्मा जी, आपको पता होगा, अर्चना जी आपको भी, एक जमाना था जब रेडियो पे जो फिल्में थी पूरी की पूरी ऐसे सुनाई जाती थी। हाँ। कि अच्छा आजकल ये नहीं होता है। क्यों? वरना सोचिए आज इमरान हाशमी का फिल्म अगर पूरा सुना दे। है कि नहीं सर? पूरा 10 मिनट के लिए पूरा मोहल्ले का कुत्ता लोग आ जाएगा रेडियो के पास, उनको लगेगा कि हमको बुला रहे हैं। समझेंगे नहीं कि वो पप्पी में ये पप्पी में फर्क है। अनमोल जी, आप हीरोइन से शादी किए हैं ना? इत्तेफाक का बात देख के शर्मा जी भी हीरोइन से करना चाहते थे शादी। हो ना पा सका, ये उनके लिए सिंग करते रहेगा, लेकिन कोई और सिंग आके। गुड़िया, तेरे को एक बात बोलना भूल गया मैं। हाँ। गेट आउट। हो गया तेरा? नहीं हुआ है, अभी बाकी है। कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ कर लो। ठीक है, फिर कर लेते हैं। वैसे हम सच बताएं, हम भी आरजे बनना चाहते हैं, अपने नाम के आगे हम भी आरजे लगाना चाहते हैं। जैसे आप है ना मुंबई की रानी, हम भी बनेंगे कुछ ऐसा, क्या, पटना की प्रिंसेस। कैसा रहेगा? और वैसे भी देखिए, रिश्तों का भी कोई टेंशन नहीं है। एक बार वो पटना की प्रिंसेस अब बन गए, फिर आप देखिएगा पटना के सारे लड़के हमसे ही पटना चाहेंगे। अरे 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 अरे, छपरा के सारे लड़के हमसे ही छिड़ना चाहेंगे। समस्तीपुर के सारे लड़के हमारे साथ ही मस्ती करना चाहेंगे। हम तो रेडियो का ना पूरा समझ भी गए हैं कैसे काम करता है। I'm really prepared now.
शर्मा जी आपको पता है कल आपको 2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। कैसे? ये बात हम आपको बताएंगे 5 गानों के बाद। गुड वन गुड वन। करना होता है ना बेसिकली। पटना की प्रिंसेस तुम यही करते हैं पांडे जी। बिल्कुल बिल्कुल। उत्सुकता बढ़ाते हैं, बीच में गाने पेल देते हैं। 5 गाने बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया। ऐसे की है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे। आप लोग जैसे कहानियां सुनाते हैं ना रेडियो पे, हम वो भी तैयार किए हैं। लड़का लड़की से जाके कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लड़की लड़के से कहती है हाँ मैं भी प्यार करती हूँ। लड़का कहता है क्या तुम मेरे साथ भाग चलोगी? लड़की कहती है भाग तो चलूंगी, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? तो लड़का कहता है कहाँ? शायद तुम्हें पता नहीं है, कपूर बिल्डर लेकर आए हैं 3 बेडरूम हॉल फ्लैट सिर्फ 3 लाख रुपए के डाउन पेमेंट पे। कहानी के साथ पटना की प्रिंसेस, तुम्हारी बातें खत्म हो गई हैं? ठीक है शर्मा जी, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हम जा तो सकते हैं, लेकिन शर्मा जी हमको एक बात बताइए कि अपना ये इंसान जब बहुत सक्सेसफुल हो जाता है तो लोग उससे क्या होते हैं? जलते हैं। तो हम चलते हैं। ओके बात है। नाइस मीटिंग यू। यो यो पटना की प्रिंसेस। पटना की प्रिंसेस। थैंक यू। चलिए नाइस करेक्ट। हमने कुछ आपकी फोटोग्राफ्स निकाली हैं सोशल मीडिया से। लोग नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार करते हैं। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूँ। पहला ही फोटो आया है आरजे अनमोल। वाओ, व्हाट आर यू डूइंग दिस मॉर्निंग? आई डिजर्व टू चिल। #गुड मॉर्निंग आरजे अनमोल, पॉजिटिव वाइब्स। आइए नीचे देखते हैं कमेंट्स। दाएं हाथ से खुद ही फोटो खींच रहे हैं और शो ऐसे कर रहे हैं जैसे फोटो कोई और खींच रहा है। जरूर ये इगतपुरी में है। अगर मालदीव्स में होते तो बीच के साथ पूरा फोटो डालते। आगे और दिखाइए। अगर आपको शराब छोड़नी हो तो आप नाके पर रख जाओ, मैं उठा लूंगा। और दिखाइए। मलिश्का ने फोटो डाला है अंडर नो सर्कमस्टांस। ओके लीव इट, नहीं पढ़ते हैं ये इतनी इंग्लिश। कमेंट्स देखते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद इन्हें याद आया इन्हें सिर्फ चढ़ना आता है, उतरना नहीं। ये सच है। लड़की पेड़ पे चढ़े तो बंदर भी कुछ नहीं कहते। मैं चढ़ा था, मुझे तो बंदर ने थप्पड़ मार के नीचे उतारा था। और दिखाइए। इतना पैसा कमाती हो, आप तो आम खरीद के भी खा सकती हो। पेड़ से तोड़ने की क्या जरूरत है? थैंक यू मेरी आंखें। आम गिरा मत देना, हाफूस आम लंगड़ा हो जाएगा। टेक्निकल पंच। और देते हैं फोटोग्राफ। ओहो मेरा भाई। कैंडिड फोटो वाला पोज। रूम। ये तो वीडियो गेम वाला मोटरसाइकिल है ना नाविद भाई? हाँ वीडियो। कमेंट्स दिखाइए। 2 लाख में धूम बनाने के लिए संपर्क करें। गर्मी में गरम सीट पे बैठने के बाद मेरा भी मुंह ऐसा ही बन जाता है। जीन्स आपने ऐसी ही खरीदी थी या बाइक से गिर के ऐसी हो गई है? पेट्रोल नहीं भराओगे तो ऐसे ही मुंह से रूम करोगे। और दिखाइए। पांडे जी आप तो कह रहे थे मैं टी टोटलर हूँ। फुल चैट कमिंग सून। अवर मोस्ट फेवरेट वरुण धवन, कृति सेनन। स्टे ट्यून्ड इंडिया। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। अनुराग भाई आपने इनके साथ फोटो खिंचाई है या इनके हाथ में फंस गए हैं? किसी ने लिखा मेले में बिछड़े भाई बहन। मुझे भी जब तक दीदी 500 रुपए नहीं देती थी मैं भी उनको जाने नहीं देता था। बिना घड़ी देखे मैं बता सकता हूं फिलहाल आपका वक्त अच्छा चल रहा है। और दिखाइए। अर्जुन मोल 8 years of marriage today, 15 May 2014. Oh wow, congratulations brother. अभी 15 मई अभी गया है। बहुत प्यारी जोड़ी आपकी, खुश रहें आप। थैंक यू। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू यू। किसी ने लिखा उसको भाई वेडिंग एनिवर्सरी होता है, मैंने वेल्डिंग ही लिखा है, उसमें जुड़ के रहना पड़ता है भले ही कितनी भी चिंगारी निकले। बढ़िया है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया ध्यान के लिए बहुत बढ़िया, सही लिखा है। और दिखाइए।
शादी से पहले ये आखिरी बार था जब अनमोल का मुंह उनकी वाइफ के सामने खुला था। और दिखाइए। ओहो, नाविद भाई ने डाला डोंट हैंग्री मी। भूख लगी थी आपको नाविद भाई? भूख और गुस्सा दोनों चीजें। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैंने सुना है आप बहुत अच्छा मुर्गा बनाते हो। 28 तारीख को मेरे भांजे की बर्थडे पार्टी है, इसमें 15 लोगों के हिसाब से मुर्गा बना दोगे क्या? शादीशुदा आदमी की डेट पे अगर बीवी आ जाए तो आदमी का ऐसा ही चेहरा बनता है। इन्होंने 2 ग्लास बनाए हैं, एक चढ़ाने के लिए, दूसरा उतारने के लिए। और दिखाइए। धन्यवाद, शुक्रिया। ऋतुराज की फोटो नहीं दिखाई? ऐसी ऐसी फोटो डालते हैं दुनिया में कोई आदमी नहीं डालता इंस्टाग्राम पे। सीरियसली? इनके सिर्फ शेड्स की फोटो होती है, कान की होती है, रिस्ट की होती है, ऐसे अलग अलग बॉडी पार्ट डलते हैं, फिर हम असेंबल करते हैं, फिर जाके एक ऋतुराज बनता है। ऋतुराज को कमेंट्स भी वही लोग करते हैं जिनके दिखते नहीं है। अच्छा, मलिश्का जितनी प्यारा ये बोलती हैं, ये मल्टी टैलेंटेड है ये। इन्होंने बड़ी सारी हॉलीवुड फिल्मों में डबिंग भी की है, अपनी आवाज दी आपने। मैंने एक्टिंग भी की है कपिल। एक्टिंग भी। मैंने गाने भी गाए। बोलने वाला था अभी, दीदी पहले ही बोल पड़ी। तो मलिश्का जो है बड़ी मल्टी टैलेंटेड है, ये बोलती तो अच्छा है ही, एक्टर बड़ी कमाल की हैं। एक्टर बड़ी कमाल की है, एक्टर बड़ी कमाल की है। और अच्छा, आपने कभी कभी देखा होगा कि ना प्रोग्राम कुछ ऐसे भी आते हैं रेडियो पे, लव गुरु टाइप, वो आपको बातें बड़ी मीठी मीठी सुनाते हैं कि प्यार कोई गुनाह नहीं है, इबादत है। प्यार कीजिए, ये आंखों से बाहों तक का सफर है, सफर तय कीजिए। लड़कियां तो इंप्रेस होती हैं, और में जब धुंध पड़ती है ना तभी लड़के भी दीवाने हो जाते हैं। फिर ये जो लव गुरु वाला प्रोग्राम करते हैं, रात को 12 बजे तो खत्म हो गया, घर सुबह 7 बजे निकलते हैं वापस, ये लड़के पीछे लग जाते हैं। आपके साथ कोई क्रेजी फैन आपके पीछे पड़ा? ये सवाल मेरा आप पांचों से है। बहुत सारे किस्से हैं। एक्चुअली ये जो आपने बताया, एक्चुअली रात के जो आरजेस हैं उनके साथ ये बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। क्योंकि मेरा शो रात को हुआ करता था, लड़कियों का खून में लेटर लिखना या अलग अलग तरह से मेरे शोना, मेरे बब्बू केक भेज देना। अच्छा। बड़े अतरंगी तरह के फैंस होते हैं, कुछ ऐसे भी फैंस होते हैं जो कंफ्यूज फैन होते हैं, आते हैं आप इवेंट के बाद, उनको एक्साइटमेंट होता है आपके साथ तस्वीर खिंचाने का। मेरे साथ पर्सनली हो चुका है, वो आई हैं आके, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, मैं आपके साथ फोटो खिंचाना चाहती हूँ। फोटो खिंचाने के बाद बोलती है थैंक यू जीतूराज, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैंने कहा मैडम मैं जीतूराज नहीं हूँ। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, अनुराग पांडे, आई एम सॉरी। इतनी बेइज्जती मत खराब करो हमारी। लेकिन ये सब तो मजाक वाली बातें हो गई। मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा कि रात का शो करते थे तो कई बार लड़कियां आ जाती थी मिलने के लिए, और हमारे सिक्योरिटी गार्ड आके बताते थे भी कोई आके बैठी हुई है, फिर उनसे मिल लेते थे। लेकिन एक बार वो सिक्योरिटी गार्ड ने आके हमको बताया कि मुझे बोले कि वो बैठी हुई है आपसे मिलने के लिए, आधा एक घंटे से बैठी हुई है लेकिन जा नहीं रही है। मैं कहा कोई बात नहीं, देखते हैं कितनी देर तक बैठती हैं, मेरा तो रात को 12 बजे तक का शो होता है। वो 12 बजे तक बैठी रही और मेरे लिए वही जगह थी जाने के लिए जहाँ से मैं जाऊँगा। वो मिली मुझसे और मुझे कहती है मुझे बैठी है, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। मैं बैठा, थोड़ा घबराहट भी थी, अंधेरा था पूरे स्टूडियो में, एक बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड, मैं और वो, माहौल बड़ा डरावना था। उन्होंने अपने अंदर से एक लेटर निकाला, मुझे लगा एक लव लेटर होगा। कहती पढ़िए। मैंने वो लेटर पढ़ना शुरू किया तो कपिल भाई वो सुसाइड नोट था। अरे बाप रे। कहती रात को आपको रोज सुनती थी, जिंदगी से हताश होके एक दिन रात को सुसाइड करने का मैंने प्लान बनाया। लेटर लिखते लिखते आपका रेडियो शो चल रहा था, आपने कुछ एक ऐसी बात कही कि मुझे लगा कि आज नहीं मरना, कल मरूंगी, और कल से परसों और हफ्ता और महीना और 6 महीना आज जिंदा बैठी हूँ तो आपके लिए ये लेटर आपको देके जा रहा हूं। क्या बात है। चलिए जी, हमारे शो का एक असूल है, जो हमारे दर्शक आते हैं वो उनके जो भी चहेते स्टार्स आते हैं, हम उनके साथ इंटरेक्ट भी कराते हैं, और कभी कभी हम किसी मुद्दे पे बातचीत करते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना न्यूज़पेपर में या टीवी पे या कुछ ऐसे विज्ञापन आते हैं कि अगर आप इस बात का ये कॉन्टेस्ट जीतते हैं तो आपको ये फ्री मिलेगा। जैसे नाविद भाई ने बोला कि वॉशिंग मशीन फ्री में मिलेगी। आपको क्या लगता है क्या क्या फ्री होना चाहिए? मुद्दे की बात पे आते हैं जी भाई साहब। हेलो कपिल जी। हेलो सर। हेलो एवरीवन। हेलो। मैं रमेश लालवानी उल्लासनगर से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी आपका। मेरे घर में एक नल है पानी का। पानी का नल है, अच्छा जी। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में सरकार 3 और भी फ्री नल लगा के दे। क्यों? एक नल होगा सुबह को, मस्त उसमें से गरम गरम दूध निकलेगा। दूध वाला नल चाहिए आपको? हाँ। अच्छा जी, और क्या क्या ख्वाहिशें उसमें से आपकी? गरम गरम दूध निकलेगा, मेरे पोते, मेरी नातियाँ और मेरे बच्चे पियेंगे। अच्छा जी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी। फिर दूसरा भी नल चाहिए मुझे। वो कौन सा? वो जो दोपहर को जो उसमें से चाय निकले गरम गरम। अच्छा जी। और तीसरा भी एक नल चाहिए। हाँ। उसमें क्या निकले? ये बताओ। वो जो मुझे रात को 8 बजे के बाद जो उस नल में से बियर आनी चाहिए, बियर। बियर निकले? हाँ, चिल्ड बियर।
एक एटीएम भी लगाओ जिसमें पैसे भी निकले। वो भी लगा के दीजिए आप। ये बाबूराव का स्टाइल है। देखिए मुझे पता नहीं ये पॉसिबल हो सकता है, मेरे आपकी बातें सुन के विजुलाइज करके मजा बड़ा आया मेरे को। लालवानी जी बड़े शातिर हैं आप। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। ओह ये बाल स्ट्रेट कितने किए हैं, वाह। हेलो मैम, नमस्ते। हेलो कपिल जी। Hello. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नमिता। अगर हमें कुछ मुफ्त में मिल सकता है तो लेडीज की सबसे फेवरेट है पानी पूरी। अगर जी। प्लीज हमें, अगर आप कपिल जी आप या पता नहीं गवर्नमेंट कोई भी हम लोग को पानी पूरी अगर मुफ्त पानी पूरी मुफ्त में कर दे। पानी पूरी नहीं, उसका रीजन मैं बता रही हूँ करके कि पानी पूरी में दो प्रॉब्लम होती है करके। एक तो जब पानी पूरी वाला गिन के देता है ना तो वो बहुत दुख होता है। ये में क्या होगा? हाँ, उसके लिए लगता है या तो फिर हम डबल प्लेट ले और उसके बाद भी वो उसका मैथमेटिक्स बड़ा स्ट्रांग होता है, चाहे 6 लेडीज खा रही हो। सबका हिसाब रखता है उसको आपका चौथा मैडम, आपका है ना बड़े। उसमें हमारा मन नहीं भरता है। और सेकंड चीज है करके कि हमें पानी पूरी लेडीज को बहुत पसंद आती है, लेकिन हमारे हस्बैंड, स्पेशली मेरे हस्बैंड को तो पानी पूरी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो किस चीज के शौकीन है आपके अलावा? मैं शर्मा जी। वो मतलब क्या खाने के शौकीन है? मेरे हस्बैंड को स्वीट्स बहुत पसंद है, उनको पंजाबी खाना बहुत पसंद है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, शुक्रिया। सो मच। और कोई हमारे दोस्त? जी पाजी। सत श्री अकाल कपिल सर। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आपकी ऐसी ऑफर है जी, तो मेरा एक छोटा बेबी है। अच्छा जी। उसके लिए जितने डायपर मेरे को चाहिए सभी फ्री कर। ये सही बोला, सही है, सही है। एक बेबी आपका अगर डायपर फ्री में मिल लगे 5-7 और ना कर लें आप। गवर्नमेंट इसलिए नहीं कर रही है। उसकी डाइट से ज्यादा उसकी पोटी का खर्चा मेरे को उठाना पड़ता है। चलिए पाजी, हम अपने शो के माध्यम से आपको मतलब किसी डायपर कंपनी को बोल देते हैं, पाजी का नंबर ले लीजिए। आपके लिए भी चाहिए कुछ डायपर? देखो जी, ऐसे ही हमारा टाइम पास हो रहा है। 3 महीने के लिए हमने शो बनाया था, मजेदार लोग आते हैं, 10 साल कब हो गए मुझे पता नहीं चला। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया पाजी। कहाँ से आए आपने बताया नहीं? जलंधर पंजाब। जलंधर से? जी हाँ, मेरे ससुराल है जलंधर में। अच्छा जी। हाँ, मुझे नहीं अच्छा लगता जलंधर। बड़े प्यारे शहर से आए पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.